December 3rd week and November last week to December 3rd week, you will see those shares only have been disposed in the Asian market, which they have bought in the US market. And especially the currency market, if you coincide with the share market, you will see there's a direct momentum of the both. But कहीं हम लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है ladies, hold on. We are live and let's start the session because I know you all have so much to share with us that 1.5 hours we come padenge. So let's not get into discussion mode now. Let's start the session, and this is the first session of the year 2022, and bang on what topic we've chosen. So ladies, hats off to all of you, because it is because of all of you that we are here. So let me first welcome the President, Richa Shah. Thank you, Richa, for giving me the opportunity to host the session. Oh my God. Money markets मेरा favorite topic है, और ये जो आज के पांचों पैनलिस्ट हैं वो उनको आपने rightly बहुत अच्छा नाम दिया है, gurus. So we all have now started calling them gurus in the Money Matters group. So 2022 begins with a bang. Let's start investing. Let's start looking at share market with more knowledge, because we have our gurus with us to guide us and to show us the right path. So welcome to all 5 of you: Parul, Shuchi, Dolly, Shubha and Suman. You all have been guiding us. You all have been guiding us through, I think, last 1.5 years हम लोगों ने ये group start किया है. तब से हमारे साथ Parul and Suman है. Then slowly we got Dolly. Then we got Shuchi, and now we have Shubha. So the experts group is also growing. Guru भी बढ़ रहे हैं चेलों के साथ. तो आई थिंक हम लोगों ने बहुत छोटे ग्रुप से स्टार्ट किया था मनी मैटर्स, बिकॉज हम सब चाहते थे कि फाइनेंशियल नॉलेज भी हम सबको हो. और सिंस वी हैड पारुल, हम लोगों का ये स्टॉक मार्केट का जो लाइकिंग या अट्रैक्शन स्टार्ट हुआ वो पारुल के सेशन से स्टार्ट हुआ. फिर सुमन ने एक धमाकेदार सेशन लिया था जो कि सब एकदम, मतलब इट वाज लाइक्ड बाय एवरीवन. एंड I got requests from Facebook Live watchers कि मुझे इसका session अपने group में कराना है and all that. Oh wow! So, thank you. Suman, you also did. I remember you did one session in some other group also. So that was fantastic. And now we have Dolly, who's giving us technical sessions, which is commendable because वो भी बहुत अच्छे से explain करती है. Shuchi and Shubha, they are quite new to the group, but they have added a lot of weight. So we hope that we learn from all of you in near future also. Let me give a brief introduction of each one of you, not taking much of time. So Parul का जैसे मैंने बताया, Parul has been our guru since beginning, जब से हमने money market start किया है. A self-learned expert जिसने पैसे खोए पहले और फिर वापस सारे पैसे कमाए, और अब हम लोगों को सबको सिखा रही है कि हम सब कैसे स्टॉक मार्केट में कॉशियस रहकर पैसे कमा सकते हैं. सो थैंक यू सो मच पारुल फॉर बीइंग दैट गाइडिंग लाइट टू द मनी मैटर्स ग्रुप. नेक्स्ट वी हैव डॉली, द टेक्निकल एक्सपर्ट. शी हैज बीन अ प्रोफेशनल ट्रेनर आल्सो अर्लियर. अब वो नहीं करती हैं बिकॉज शी हैज अ वेरी वेरी हाइपर टॉडलर beside her, इसीलिए म्यूट भी बैठी है अभी. So Dolly, your experience in technicals has actually been very very influential to others in the group, जो कि अब हम technicals में interest ले रहे हैं, because हम लोगों ने कभी भी technicals में कभी interest लिया नहीं. chart क्या होता है and all that, we never wanted to learn that, but with your enthusiasm we are all learning it. So thank you so much, Dolly. Thank you so much. नेक्स्ट सुमन, हमारी एकदम, मैंने जैसे बताया जो उसका सेशन था, if you have not watched it, let me tell everyone, if you have not watched it, it is there on our YouTube channel. You must go and watch that session.
It was one session on stock market, जो कि अगर आपने stock market का कभी S भी नहीं पता है, तो भी आपको पूरा सारा ज्ञान मिल जाएगा stock market के बारे में, and in a very very interesting way. So Suman has been our own in-house startup investor. So बहुत कम women investors मिलते हैं, जो दूसरी companies में पैसा लगाते हैं. So Suman has been one of such rare finds जो कि startup investing में भी है, and she is definitely a stock market expert, handling lots of portfolios बड़े बड़े. So जिस दिन market गिरता है उस दिन we know that Suman has been selling. So welcome Suman. Thank you so much, Kavita. Next is Shuchi. Shuchi has been like, I think she has trained over 5,000 ki 50,000 Shuchi. मुझे number याद नहीं है. So now she's stopped counting. She has been a professional trainer in one of the best stock market training companies of India, of the country, and she has been an expert. हम लोगों ने एक session कराया था, not a session, we had done a entire course on stock market training, and Shuchi was one of the trainers, and we loved her sessions. So she's got that knack of explaining things in a very very simple ways. Expert at fundamentals, and technicals are her favorite. So आज हम लोग सब देखेंगे Shuchi का expertise. So thank you so much Shuchi for being here. My pleasure. And now Shubha, the newest kid on the blog. So thank you so much Shubha. Shubha is actually a nature enthusiast besides being a tax expert. बहुत सारे feathers है इसके hat में, तो सारे नहीं बताऊंगी अभी. But thank you so much Shubha for taking this active interest in the group and answering questions despite being अभी tax filing और ये सब का last date चल रहा है, but फिर भी आप answer करते हो, so that is commendable. And Thank you again so much. पांचों को thank you so much. And मैंने काफी time ले लिया actually, but let's now begin the New Year's session with a bang. I will also like to thank everybody in Money Matters group for taking active interest in stock markets and also other financial matters, because I think it is very important for women to understand what is happening in the outside world, and also what investments and what are the other things which are being carried out in your family. When you know all these, the other members of your family are also at ease कि चलो इसको पता है. So I am sure कि आप सब interest ले रहे हो, तो आपको अच्छा भी लग रहा होगा, and अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो वो भी आप ग्रुप में डालें, और आपको क्या चाहिए आप वो भी ग्रुप में डालें. We are all here to make this group as interesting as possible and as interactive as possible. So डॉली का एक complaint रहता है कि interactive नहीं है हम लोग sessions के दौरान, questions नहीं पूछते हैं. So आज let us flood them with questions and ये complaint उनकी खत्म करते हैं. And let's begin the session with Shuchi, who's going to take us on broad indices today for 2022. So over to you, Shuchi. Hi everybody, thank you so much for giving me this opportunity. And I always like talking. So, and if somebody asks me about markets, I can just go on and on. So yes, I will not leave out on this opportunity and start right away with the markets broader indices. Now, why we are talking about broader indices, it's very simple that, we could have simply spoken about stocks, and, we would have simple logic. There would be fundamental logic and technical logic, which could be given up by all our experts here. But we need to understand, even when if the particular company is fundamentally very good or anything, the broader indices play a very very important role, क्योंकि अगर market जब गिरता है तो अच्छे company भी गिर जाते हैं. And when we know that yes, this is the broader indices, we know that okay, I need to now focus on my portfolio stocks or my blue chip companies or these set of stocks, because they will give me good opportunity to enter. So yes, that's the reason I'll be quickly taking you all to a broader Nifty view, and then we will talk about some strong pockets, because again, as I said,
we need to be very theme specific. We need to be very stock specific. 2021 has been really, really fabulous for all market participants. चाहे वो investor हो, चाहे वो trader हो. I think most of us have made money in the market if have been trading or investing with certain amount of discipline and थोड़ा सा लॉजिक, जस्ट बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ जीरो सम गेम. तो किसी ने अगर पैसे कमाए हैं तो किसी ने लूज किया भी है, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, बट अगर थोड़ा सा ध्यान से अगर अपने करते तो येस देयर वाज इजी मनी इन 2021. बट आई पर्सनली फील कि 2022 इतना इजी नहीं रहेगा. बट येस, सिलेक्टेड थीम बेसिस पॉकेट वाइज अगर अपने फोकस करें एंड थोड़ा सा ट्रेड डिसिप्लिन अगर रखे, इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन अगर रखे, तो येस we can do good in the markets in 2022 also. So not wasting any more time, let me just take you quickly to the presentation. I've just made a small presentation here where I would like to discuss what do I see in the Nifty. So can everybody see my screen? Yeah, it's Yes. visible. It's visible, right? So right. So basically 2021 के बाद last 2 months में हमने देखा कि market has corrected almost 10% in a very very healthy way. अगर आपने देखे तो after the COVID fall, market actually never gave this kind of correction. And you know, bull market में अगर अपने को लंबा घोड़ा बनना है तो एक थोड़ा थोड़ा corrections is very very important. जैसे अपने जानते हैं कि मार्केट का जो मूवमेंट करने का तरीका है वो एक जिग-जैग है. और अगर आप अपने यहाँ पे अपने देखते हैं ये जो चार्ट दिख रहे हैं तो द जिग हैज बीन ऑलवेज बिग एंड द जैग्स हैव बीन फ्लैट. मतलब प्राइस करेक्शन नहीं था मार्केट में, टाइम करेक्शन था. अगर आप यहाँ पे इस एरिया में देखें, अगेन वी सॉ अ बिग पैराबोलिक राइज एंड देन नवंबर मंथ से हमने यहाँ पे एक प्राइस करेक्शन देखा विथ टाइम, क्योंकि 2 महीने हमारा करेक्शन चला. सो दिस पर्टिकुलर टाइम वी हैड अ 10% फॉल इन अ वेरी वेरी अगेन स्ट्रक्चर्ड वे. अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल बनाया है, which again it is a bullish sign because it is a bullish continuation pattern. एक बुल मार्केट में इस तरीके के पैटर्न बहुत हेल्दी होते हैं. तो ये एक स्ट्रक्चर्ड फॉल था और जैसे ही मार्केट में हमने देखा कि 17,250 का लेवल क्रॉस किया है, क्लोजिंग बेसिस पे जब ये क्लोज कर दिया है, तो दिस हैज गिवन एन अपवर्ड टारगेट. इस चैनल का विथ, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ चैनल है उसका विथ हमारा आता है अप्रोक्सीमेटली 18,200. तो इमीडिएट शॉर्ट टर्म में अगर अपनी बात करें तो 17,600 वाज अ रेजिस्टेंस जो कि लास्ट वीक तक वाज एप्लीकेबल, बट टुडेज मार्केट सेशन हैज बीन वेरी वेरी गुड. एंड जो नेक्स्ट वर्केबल टारगेट आता है निफ्टी पे वो होता है 18,200. So short term point of view से we can say yes the markets have reversed. Now the reason why I say is कि this is the daily chart and daily chart पे market जो पिछले 2 महीने से moving averages के नीचे था वो अब मूविंग एवरेजेस के ऊपर प्राइसेस ट्रेड कर रहा है और यहाँ हमें एक कन्वर्जेंस दिख रहा है. सो दिस इज अ वेरी वेरी अगेन अ पॉजिटिव एंड अ बुलिश साइन फॉर द मार्केट, ये जो कन्वर्जेंस है. एंड RSI एक मोमेंटम इंडिकेटर है, वो भी हमें ये बता रहे हैं कि वो भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस हमको दिखा रहे हैं. तो प्राइस नीचे जा रहा था और RSI ओवरसोल्ड रीजन के पास पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिया है. तो अगेन ये हमें ये सिग्नल दे रहा है कि यस एक शॉर्ट टर्म बॉटम तो मार्केट में बन गया. कमिंग टू द वीकली चार्ट जो कि हमें मीडियम टर्म चार्ट सेटअप बताता है, तो यहाँ पे भी अगर अपने देखें तो मूविंग एवरेजेस से बहुत सुंदर तरीके से मार्केट सपोर्ट लेके यहीं से बाउंस बैक कर रहा है. So yes, we can expect कि मार्केट 18,200 and then eventually once that is taken off अपने previous top जो था 18,600 उसका लेवल अपने मार्केट में देख सकते हैं. Now coming to the next very very important sector which is the bank nifty. Why bank nifty is important? Because अपने को पता है कि approximately 33% of the nifty weightage बैंक से आता है, बैंक निफ्टी से आता है. तो बैंक निफ्टी का स्टडी अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हर समय. एंड बैंक निफ्टी को अगर अपने देखें तो ओवरऑल जो पूरा 2021 है
75% ऑफ टाइम वो एक अंडर परफॉर्मर था. ओनली इन द लास्ट लेग दैट इट हैज स्टार्टेड परफॉर्मिंग वेल. एंड देन व्हेन द मार्केट करेक्टेड, यस, बैंक निफ्टी ने एक बड़ा फॉल देखा. और अगर ये जो पिंक लाइन और मरून लाइन विच आप यहाँ पे देख सकते हो, आप देखोगे कि यहाँ से जो पूरे साल में बैंक निफ्टी ने किया है वो इस करेक्शन में बैक टू स्क्वायर वन आ गया. सो ऑल द गेन्स वर टोटली लॉस्ट. और यहाँ अगर हम मल्टीपल बॉटम्स को ज्वाइन कर दे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनता है जो कि बता रहा है कि ओवरऑल मीडियम टर्म सेटअप तो बैंक निफ्टी का पॉजिटिव है, और यहाँ पे ये एक अच्छा सपोर्ट ले रहा है, प्लस यहाँ पे एक हमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस मिला है. तो बेस्ड ऑन द प्राइस, बेस्ड ऑन टेक्निकल स्टडीज और फंडामेंटल की बात करें तो देयर हैजंट बीन any further negative changes neither in the nifty neither in the bank nifty. अगर अपने ओमिक्रॉन या कोविड की बात करें तो that market has discounted already. चाहे कितना ही पीक हो रहा हो, स्टॉक मार्केट ने ये मान लिया है कि वापस एक कंप्लीट लॉकडाउन होगा नहीं, और इंडस्ट्रीज ने अपने आप को उससे अपने आप को एडजस्ट कर लिया है. तो अगर उस लॉजिक से अगर अपने चलते हैं तो यस, बैंक निफ्टी एक शॉर्ट टर्म बहुत इंपॉर्टेंट लेवल से बाउंस बैक किया है. एंड सपोर्ट की बात करें तो यही जो 34,000 का लेवल था, दिस कुड बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम था. और रेजिस्टेंस की बात करें तो ये 37,500 एंड देन इवेंचुअली 39,000 कुड बी दी नेक्स्ट वर्केबल टारगेट्स इन बैंक निफ्टी फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. मतलब जनवरी फरवरी के बीच में वी कैन एक्सपेक्ट दीज लेवल्स टू टेस्ट ऑन द बैंक निफ्टी. नाउ कमिंग टू द स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स की अगर निफ्टी हमें पॉजिटिव लग रहा है, अगर हमको बैंक निफ्टी ओवरऑल पॉजिटिव लग रहा है, तो विच आर द सेक्टर्स विच वी शुड फोकस ऑन. तो फंडामेंटल थीम को अगर हमें प्ले करना है तो यस, again real estate sector, capital goods sector and the IT sector are very very strong sectors from the fundamental point of view as well as the technical point of view. So quickly presenting you the technical setup of the IT index here. IT index has been the star performer the entire 2021. और यहाँ अगर आप देखें तो ये अगर एक बड़ा बुल मार्केट अपने देखते हैं तो देयर वाज अ बिग पॉज, 2 से 2.5 महीने का पॉज था यहाँ पे, और वो पॉज को जब ब्रेक किया तो आप सब देखिए कि कितना अच्छा मूव दिया है हम लोग को आईटी इंडेक्स में. Similar pause we saw in the last 2.5 months, which is again a typical bull market pattern. इसे हम एक ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की स्टडीज में, जहां जिसको ये ब्रेकआउट दिया और ये कंटिन्यूसली यहाँ से आप देखिए स्ट्रेंथ दिखा रहा है. यू कांट सी एनी हार्डली एक रेड कैंडल आपको दिखेगा. एंड ये डेली चार्ट है, तो कंटिन्यूसली एवरी डे द निफ्टी आईटी इंडेक्स इज रिकॉर्डिंग हायर हाई. तो इसका अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन की स्टडीज के बेसिस पे टारगेट निकाले, प्लस अगर हम इस पैटर्न का भी टारगेट निकालते तो 40,300 से 40,400 का जो लेवल है वो हम लोग का एक मीडियम टर्म टारगेट आता है. शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए यस 39,850 इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस जहाँ पे एक फॉल्स निफ्टी आईटी इंडेक्स ले सकते हैं. So obviously if we are talking about Nifty IT which is positive, we know कि कौन से स्टॉक्स पे हमें फोकस करना चाहिए. Stocks like जितने भी heavy weights है, even the mid caps are doing very very well, like an HCL Tech, Infosys, TCS, they are all very very positively placed. Coforge, LTI, they are all very very positively placed in the IT index and can be looked upon in it. नेक्स्ट अपने बात करते हैं रियलिटीज इंडेक्स के बारे में. नाउ ओवरऑल अगर मैं कभी कोई भी रियल एस्टेट ब्रोकर से अगर हम बात करते हैं तो सबका एक ही कहना है कि मार्केट में बूम आ गया है. एंड लॉजिक भी है ना कि नॉर्मली व्हाट द इकोनॉमी साइकिल सेज इज कि अगर स्टॉक मार्केट बढ़ता है तो वहां से जो प्रॉफिट बुकिंग होती है वो रियल एस्टेट में जाती है, वहां से लोग उस अपने प्रॉफिट को रियल एस्टेट में लॉक करते हैं. Plus, with respect to government taking steps in the real estate sector, reducing of the stamp duties and all, property tax, and if you talk about work from home concept, तो एक घर बनाने का जो है mindset लोगों में वो और भी बढ़ते जा रहा है. एंड इसीलिए रियल एस्टेट एज द इंटायर पॉकेट एंड एट द सेम टाइम पूरा जो होम सेगमेंट है, अगर अपने बात करें कि होम डेवलपमेंट के लिए चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो
इंटीरियर्स के लिए सेरेमिक्स हो, पेंट हो, दिस इंटायर पॉकेट itself is quite positive, you know, from the logic. Now coming specifically to the real estate sector, अगर आपने देखे तो यहाँ पे हमें ये एक वीकली चार्ट दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन पे, एंड देयर वाज अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट जो हमें यहाँ पे मिला था 365 लेवल्स पे, बहुत अच्छा मूव मिला। एंड अगेन यहाँ पे हमें एक डाउनवर्ड स्लोपिंग बुलिश वेज दिख रहा है विच इज वेरी वेरी पावरफुल बुलिश पैटर्न। यहाँ से अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है अप्रोक्सीमेटली 490 के लेवल्स पे, तो हम इमीडिएट एक 560 का लेवल रियल एस्टेट निफ्टी पे ये टेस्ट कर सकता है। So again, you know that stick to the quality in the real estate sector also. What could be the quality? The quality is simple, like a DLF, like an Oberoi Realty, like a Prestige, Brigade, IB Real Estate. These are all quality stocks where we can focus if we want to play the real estate theme. Coming to the capital goods sector, this has been the star performer. स्टार परफॉर्मर क्यों? क्योंकि सिंपल लॉजिक, मार्केट 10% करेक्ट हो गया, ये अपने वहीं के वहीं है। आप देखिए ये खाली एक साइडवेज जाके एक टाइम करेक्शन दिया है और अभी भी मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई से बहुत दूर है, 18,600 बहुत दूर है, वेयर कैपिटल गुड इंडेक्स न्यू हाई एवरी डे रिकॉर्ड कर रहा है। तो आगे यू नो इट्स अ वेरी सिंपल सेइंग कि बाय द स्ट्रेंथ एंड सेल वीकनेस। तो जो स्टॉक तेजी में है उसी पे आप फोकस करिए, ये मत सोचिए कि हाँ स्टॉक बहुत बढ़ रहा है तो यू नो यू शुड पॉज, प्रोबेबली यहाँ से गिर जाएगा, नहीं। स्टॉक शोइंग स्ट्रेंथ, इंडेक्स शोइंग स्ट्रेंथ इज अ सिंबल कि हाँ जो स्मार्ट मनी है, जो पैसे है वो इसी इंडेक्स में आ रहे हैं, तो अपने भी इसी को राइड करेंगे। So yes, capital good index is definitely quite strong. Next, coming to the FMCG sector. FMCG सेक्टर एक बहुत बड़ा करेक्शन देखा है पिछले कुछ 2 से 3 महीनों में, एंड अब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि probably this index has bottomed out. Why? Because हमें टेक्निकल इंडिकेटर्स कुछ ऐसा सिग्नल्स एंड ट्रिगर्स दे रहे हैं। जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे RSI में एक भी नया लोअर लो नहीं बना है, whereas प्राइस अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली लोअर लो बने। इसका मतलब कि यहाँ मोमेंटम जो फॉल का है वो हॉल्ट हो गया है, और यहाँ जो ऊपर की लाइन आप देख रहे हैं यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिल गया है। तो यस, बेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्चर वी कैन एक्सपेक्ट एंड वी कैन से कि हाँ FMCG सेक्टर जो है वो बॉटम आउट हो गया है। तो इस लेवल पे हमें जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो काफी फेवरेबल हो जाता है FMCG सेक्टर पे। तो दिस वाज अ क्विक overview on the different sectors which I personally like. And coming to stocks, I will not waste too much time, but before that I would like, if anybody has any questions based on index, any broader indices, please you are free to shoot. किसी को कोई questions पूछना है? Suchi, nothing on the chat. We'll take the questions at the end. Later. ठीक है. Yeah. Okay, fair enough. So stocks to watch में I would like to talk about Tata Motors and Philip Carbon. तो टाटा मोटर्स का फंडामेंटल क्विक रिव्यू लेते हैं। तो टाटा मोटर्स भी ऑल नो ईवी थीम है, और जितने भी कॉम्पिटिटर्स है ऑटो सेक्टर में, वेदर इट इज मारुति, वेदर इट इज M&M और एनी अदर कंपनी, इन्होंने सबने बोला है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रॉपर प्रोड्यूस करके मार्केट में उतारने में इन्हें मिनिमम 3 से 5 साल लगेगा। At the same time, Tata Motors has already started production and उनकी गाड़ियां हम रस्तों पे देख रहे हैं। Government is really supporting this EV theme because of you know pollution and environment, ये सब के लिए positive है। तो अगर रोज नए नए अनाउंसमेंट गवर्नमेंट से आ रहे हैं कि स्विगी, जोमैटो, इनको सब यू नो दे ऑल विल कन्वर्ट इनटू EV स्टॉक्स। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट और ये सब की बात करें तो इवन द पुलिस एंड द स्टेट वर्कर्स, इन्हें भी जो गाड़ियां चाहिए, दे आर यू नो प्लानिंग की वो सारी ही इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी। तो थीम बहुत अच्छा है। कंपनी स्पेसिफिक की बात करें तो टाटा की कंपनी है, तो यू नो यू ऑलवेज वांट टू गो विद द ब्रांड कि हाँ भाई टाटा की कंपनी है, गड़बड़ तो नहीं होगा। सेल्स की बात करें तो यस, Q&Q बेसिस पे ये बढ़ रहा है। कैश जनरेट कर रही है कंपनी,
एंड इनकी जो वर्किंग है, सी टाटा मोटर्स पिछले मतलब 1.5 साल पहले इट वाज इन अ बिग डेट बिकॉज ऑफ सम रॉन्ग डिसीजंस व्हिच दे हैड टेकन. नाउ इट इज बीन इंक्रीज, इट इज इम्प्रूविंग. अगर आपने देखे तो जो इनका वर्किंग कैपिटल है वो कम हो रहा है. इनके जो पैसे इन्हें अपने डेटर्स को देने हैं और क्रेडिटर्स से लेने हैं, वो जो नंबर है वो भी कम हो रहा है. एंड अपना जो DII रिटेल म्यूचुअल फंड होल्डिंग है, जो स्मार्ट पीपल स्मार्ट मनी व्हाट वी टॉक, उसमें भी वी सी दैट यस टाटा मोटर्स is they have increased their holding in Tata Motors. तो अगर अपने, ये तो हो गया क्विक फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू. अगर अपने टेक्निकल की बात करें तो ये है टाटा मोटर्स का चार्ट. कैन एवरीबडी No, कैन एवरीबडी सी द now we can, yeah. राइट. ओके, तो ये टाटा मोटर्स का डेली चार्ट है. मैं इसको इतना कंफ्यूजिंग नहीं रखती हूँ. यहाँ पे देखते हैं. तो ये देखिए, ये टाटा मोटर का एक लॉन्ग टर्म वीकली चार्ट है और यहाँ पे हमें एक बड़ा ब्रेकआउट मिला था 235 पे. और जैसा कि मैंने बोला कि हर एक बुल मार्केट में एक पॉज होना चाहिए, एक कंटिन्यूएशन पैटर्न, बुलिश पैटर्न हमें दिखता है. तो सिमिलरली हम लोग को टाटा मोटर पे यहाँ पे वो दिखा एंड देन अगेन आप देखिए 350 से सीधा 500 रुपए तक टाटा मोटर गया था. Right now again it has entered into that pause mode which is very good. यहाँ जो ये गैप क्रिएट किया था, प्राइस गैप, व्हाट इज अ प्राइस गैप, यहाँ पे कोई ट्रेडिंग नहीं होता है. तो यहाँ ये जो प्राइस गैप क्रिएट किया था वो भी इवेंचुअली इस टाइम करेक्शन में इस गैप को फिल कर दिया. और अगर हम इस पूरी रैली का फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ करें, दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स एंड फिबोनाची सीरीज पॉसिबल सपोर्ट्स हम ड्रॉ करते हैं. तो यहाँ ये एग्जैक्टली 38.2% पे सपोर्ट ले रहा है जो कि हमारा कोइंसाइड कर रहा है गैप लेवल से. तो ये भी एक सिग्नल हमको दे रहा है कि हाँ ये एक शॉर्ट टर्म बॉटम हो सकता है. और यहाँ अगर हम मूविंग एवरेज को प्लॉट कर दिए तो मूविंग एवरेज भी यहाँ पे कन्वर्ज होके ऊपर की तरफ जा रहा है. और मार्केट ने या टाटा मोटर ने जो यहाँ पे ये जो प्रीवियस टॉप है ये देखिए 492 497 का है, ये एक छोटा रेजिस्टेंस है. वंस ये ब्रेक हो जाएगा 497 500 का लेवल, वंस एक बार ये कन्विंसिंगली ब्रेक कर देगा तो हमारा इमीडिएट टारगेट टाटा मोटर पे 540 लेवल्स आता है एंड देन इवेंचुअली हायर टू 600 लेवल्स बिकॉज इसका जो ये टाइम करेक्शन था वो कंप्लीट हो जाता है. So Tata Motors definitely from a medium term perspective looks very positive with a very favorable risk reward. कि risk हमारा कम है और upside movement हमारा काफी अच्छा रहेगा. Next stock which I would like to talk about is Philip Carbon. So Philip Carbon again संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है which it produces this carbon and coke जो कि मेटल इंडेक्स, टायर कंपनीज, ये सारी चीजें में काम आती है. और कंपनी वाइज इट इज फैबुलस बिकॉज अगर अपने रिजल्ट्स देखें और नंबर्स देखें, द स्टॉक हैज increasingly provided good return on equity, return on capital employed, net profit consistently increase हो रहा है, EBITDA sales consistently record highs पे है, कंपनी में डेट की लेवल कम है एंड एट द सेम टाइम प्लेज इस कंपनी में 0 है. तो यस इन केस इनफैक्ट इसका अभी 3-4 दिन पहले ही रिजल्ट आया था, तो जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट था that has been also very fabulous and it is a dividend paying company. So fundamentally the stock is taken care of. Now again moving on to the technical setup. कंपनी ने रिसेंटली अपना नाम चेंज किया, BL ऐड किया, फिलिप कार्बन BL, that is black carbon. So yes, अगर हम देखें ये स्टॉक का वीकली चार्ट सेटअप पहले देखते हैं, तो अगर अपने ये देखें अगेन दिस स्टॉक इज इन अ फैबुलस बुल रन, बुल मार्केट पे है और एक वी शेप रिकवरी टाइप का हम इस लेवल पे देख सकते हैं. तो इवेंचुअली एनी विच वे जो 280 लेवल्स है
ये एक इसका इम्पोर्टेंट लेवल टू वॉच है। एंड वंस द स्टॉक 280 के ऊपर चला जाता है तो फिर यहाँ से हम 30-40% मूव अप मूव इस स्टॉक में देख सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू का बात करें तो यहाँ पे हम देखें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर प्राइस पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, विच इज अगेन अ बुलिश पैटर्न एंड इट इज अ रिवर्सल पैटर्न। मतलब ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है इसको चेंज करता है। तो ये पैटर्न अपने आप में क्वाइट बुलिश है और एक एकदम टेक्स्ट बुक स्टाइल सेटअप है, क्योंकि यहाँ पे इसने वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है और उसके 3 कैंडल मतलब एक पुल बैक आता है ब्रेकआउट लेवल तक, वो भी हम देख लिए। तो अगर हम सपोर्ट की बात करें तो इस स्टॉक का सपोर्ट क्या है, सिर्फ 230 रुपीज, विच इज ओनली 7 रुपीज फ्रॉम द करंट लेवल। और ऊपर जाने को शॉर्ट टर्म में हमें 275 रुपीज तो इमीडिएट लेवल्स लग रहे हैं, क्योंकि मूविंग एवरेज बोल लेते हैं अपने, RSI बोल लेते हैं अपने, इसका अगर बॉलिंजर बैंड और दूसरे इंडिकेटर्स देखें वो भी पॉजिटिव है। एंड वंस 275 इज टेकन द स्टॉक कैन रीच लेवल्स हाई। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये स्टॉक मीडियम टर्म पे या 2022 पे हम लोग इसमें अब एटलीस्ट 40-50% राइज इस लेवल से देख सकते हैं, बट ऑब्वियसली ऑन अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट फ्रॉम अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। So this was all from my side. How do I stop the share? Acha, I'll do that. Yeah. So thank you so much, Shuchi. Shuchi's 2 shares were Tata Motors and Philips Carbon. Tata Motors हमारी सिमी का भी favorite stock है. So moving on to Parul. मेरा भी कब अच्छा, से डॉली साल का भर भी। से चिल्ला रहे डॉली का तो चिल्ला रहे हैं टाटा मोटर्स इज अ SIP स्टॉक। यस, तो डॉली का बहुत सारा स्टॉक्स फेवरेट है एक्चुअली, इसीलिए मुझे थोड़ा याद कम रहता है. So Parul, yes, over to you. Yeah, शुचि, आपने जो भी बताया इट वाज रियली, मैं भी बहुत ध्यान से सुन रही थी. और मेरा फर्स्ट पिक है, जब टाटा मोटर्स शुचि का इतना फेवरेट है और वो 2022 के लिए उस पर बेट कर रही है, तो टाटा मोटर्स बिना उसके एंसिलरी पार्ट्स के तो चलेगा नहीं. तो सोना BLW तो बनता ही बनता है. तो और वो मेरा शायद डन है जी, एकदम दिवाली से मैं इसके पीछे पड़ी हूँ शायद, या इनफैक्ट जिस दिन से ये IPO आया है उस दिन से मैं इसके पीछे पड़ी हूँ. एंड इट्स मैनेजमेंट एंड ओवरऑल एवरीथिंग इज फैबुलस. आई थिंक आफ्टर मतलब इस काफी इम्प्रेसिव है इसका मैनेजमेंट, और काफी मतलब डेडिकेटेड एंड वन ऑफ द बेस्ट है. और ये एंसिलरी पार्ट्स बनाते हैं ऑटोमोबाइल्स के, बी इट योर कार्स, बी इट योर बिग व्हीकल्स. सो इन लोग मेनली डिजाइनिंग और इसके ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज वगैरह में डील करते हैं. उसका मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, सप्लाई भी करते हैं, और उसके पार्ट्स और कंपोनेंट्स नॉट ओनली इन इंडिया में उनके 6 प्लांट्स हैं, और बाकी और उनके टोटल 9 प्लांट्स हैं. तो इनके चाइना में भी काफी अच्छी पहुंच है, और ये लोग काफी डिफरेंट कंट्रीज में इनका प्रेजेंस है. तो और अभी इस समय इन लोग स्पेशली EV दैट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बहुत फोकस कर रहे हैं, एंड दे कैन प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन EV गेटिंग कमिंग टू इंडिया सून, वेरी सून. एंड इनका मतलब आप जब से इन्होंने लिस्ट हुआ है तब से मैं इनके परफॉर्मेंस देख रही हूँ. इनकी प्रॉफिट मतलब क्वार्टर टू क्वार्टर इनकी प्रॉफिट्स देखो आप, इट हैज बीन इंक्रीजिंग. तो उस तरह से इन लोग प्रॉफिट्स भी इंक्रीज कर रहे हैं. जब ये लोग IPO नहीं भी लाए थे ना, तो दे वेर अ डिविडेंड पेइंग कंपनी. तो मतलब मैनेजमेंट इज वेरी ट्रूथफुल एंड वेरी मतलब सीरियस ऑन मतलब शेयर होल्डर्स के भी मतलब उनका जो बेनिफिट है उसके लिए भी बहुत इन लोग इस चीज को लेके हैं. तो दैट वे मतलब इट गिव्स अ कॉन्फिडेंस इन द कंपनी.
एंड मैं सोना कॉमस्टार को मतलब फंडामेंटली भी मैंने इसको चेक किया एंड आई फाउंड इट गुड इनफ एंड इट कैन बी अ वेरी गुड लॉन्ग रन प्ले। और मैं तो इसमें मतलब जब से आईपीओ आया है तब से मैं इन्वेस्टेड हूँ एंड और इसमें मैं स्लोली इसमें अपने स्टेक बढ़ा रही हूँ। मैं इसका ये तो इसका फंडामेंटल्स मैं बहुत ज्यादा इतना ही मैं बता रही हूँ, बाकी और मैं इसके थोड़े टेक्निकल्स भी, एक मिनट, आई डोंट नो, आज थोड़ा सा या तो ये सोना BLW प्रिसिशन फोर्जिंग्स, ये इसका पूरा नाम है। तो जब मैं ये इसका चार्ट है, ये शॉर्ट टर्म चार्ट है मेरे समझ से, शायद ये, तो इसमें मैंने जब इसको देखा, मैंने शायद डेली चार्ट्स पे है ये, मुझे लगा कि ये एक फ्लैग पैटर्न, मतलब ये एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है। ये इस समय जब मार्केट वाज फॉलिंग, उसमें इसने 692 का एक बहुत अच्छा बेस बनाया है। उस पे से फिर ये चलना शुरू हुआ है एंड नाउ फ्रॉम हियर ऑन, लेट मी टेक इट लाइव क्या, तो यहाँ पे जो है इसका, यहाँ पे फ्लैग पैटर्न जैसा बन रहा है एंड आई एम वेरी मच, मतलब फ्लैग पैटर्न मेरा वन ऑफ द फेवरेट पैटर्न्स है। और इसका मैं टारगेट अराउंड शॉर्ट टर्म में इसका टारगेट मैं अराउंड 780 के लगभग देख रही हूँ। मैं इसका जब यहाँ 700 से इसका अगर मानती हूँ कि ये चलना स्टार्ट हुआ है, तो फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट रहने से 100 पॉइंट्स का टारगेट्स कहीं नहीं गया होता है, बल्कि तो आप शॉर्ट टर्म में मान लो ये 1-2 महीने की बात है, 780 इज नथिंग। और मैं ओवर द ईयर मैं तो इसको देख रही हूँ कि विद इन 6 मंथ्स ये 1000 रुपीज होने वाला है। और मेरे स्टाइल में बोले तो फाइनल, I was waiting. माय फाइनल टारगेट ऑफ सोना कॉमस्टार जिस दिन ये 2000 टच करेगा, फिर उसके बाद बात करेंगे। ये इसका आपके लिए तो हम लोग ने दिवाली के लिए लिया है ना, नेक्स्ट दिवाली पे बात करेंगे। हाँ। एकदम। तो I'm so very confident about this company अभी तक। और मैं इसका अभी कुछ दिन पहले भी इसका जी पे इसके मैनेजमेंट आया था, एंड मतलब आई वाज सो इम्प्रेस्ड इवन द डे आईपीओ वाज लॉन्च्ड, इनके जो मैनेजमेंट की टीम आई थी, दे वर सो वेरी कॉन्फिडेंट कि वो क्या कर रहे हैं। एंड इवन दैट डे आल्सो he did not even disclose when मतलब whole of the globe knows कि टेस्ला इनकी जो है टेस्ला में इनका जाता है प्रोडक्ट्स, बट he did not मतलब इस चीज को बहुत वो हाइप नहीं किया कि हाँ वी मतलब हम लोग टेस्ला को देते हैं। तो दैट इज व्हाट ह्यूमिलिटी एंड हम्बलनेस ऑफ द मैनेजमेंट शोज कि नहीं, इट हैज अ लॉन्ग प्लान। तो एक ये चीज है। और फिर यहाँ पे ये मेरा मंथली चार्ट है, ये पता नहीं कैसे इसमें हाँ मंथली चार्ट है, इसमें आप देखो ये अच्छे से यहाँ पे ये सारा करेक्शन लेके ये यहाँ 692 पे अच्छा बेस बनाया है इसने। एंड यहाँ पे मैंने सबको अच्छे से सबको बोला ले लो ले लो ले लो, एंड अब ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है ये चलना। तो दिस शोज मतलब मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है इसमें। हम सबने ले लिया पारुल। अभी ये तो इतना बढ़ गया, गिफ्ट है ना पारुल की तरफ से। अरे हम सब ने लिया है तभी तो बड़ा है ना। मैं तो बोला ना हमारा दिवाली गिफ्ट है ये।
और दूसरा मेरा पिक है HDFC AMC। हम लोग सारे शेयर मार्केट के साथ साथ यस यू कैन स्टिल एंटर इट, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ इसमें। 2000 का टारगेट है पारुल का, 2000 का दिवाली तक। तो आज तो 754 ही है। तो आराम से आप एंटर कर सकते हो। और अगर थोड़ा सा अभी तो मार्केट यूं ही रोलर कोस्टर चलता रहेगा, जब भी नीचे मिले आप लेते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो और दूसरा मेरा HDFC AMC पिक रहेगा। हम लोग सारे म्यूचुअल फंड्स में इस समय सारे बहुत सिप कर रहे हैं, बहुत बुलिश हैं। और HDFC AMC इज वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल मतलब फंड्स मैनेजमेंट कंपनी इन आर कंट्री। और उसका काफी बड़ा मतलब आफ्टर विजाज फाइनेंस और फिनसर्व, इसके बाद HDFC AMC एंड उनके जो मैनेजमेंट है वो भी काफी रिनाउंड है, मतलब नोन है कि अपने म्यूचुअल फंड्स को बहुत अच्छे से मैनेज करती है। और इनके पास बहुत मतलब सिर्फ सिप नहीं, इन लोग बहुत तरीके का मतलब बॉन्ड्स है और डेट फंड्स और बहुत सारे मतलब मल्टी कैप फंड्स, इनके पास बहुत फंड्स हैं। तो ये लोग मैनेज करते हैं। और HDFC AMC मुझे एक तो ये मतलब क्योंकि काफी अच्छी कंपनी है, रिनाउंड कंपनी है, प्लस इसके बाद सबसे बढ़िया तो मुझे इसका मतलब अभी चार्ट पैटर्न आफ्टर लॉन्ग पीरियड, मुझे याद है कि मैं इसको लास्ट नवंबर में 2800 में बेच के निकली थी। उसके बाद ये अभी जो है जस्ट अ मिनट, It's around 24 something. हाँ अभी 2474 आज लास्ट था। और इसने काफी मतलब अच्छा करेक्शन देकर ये 2400 के राउंड इसने बेस बनाया है। हाँ, और अब ये धीरे से अब ये चलना स्टार्ट हुआ है। तो दिस इज द वेरी राइट टाइम, आप यहाँ से आराम से 400 पॉइंट का मतलब 2800 तो कहीं नहीं गया हुआ है, एंड ये ऊपर जाने से 33,000 तक का आराम से ये जा सकता है वेरी कंजर्वेटिवली। तो इसलिए मुझे ये बहुत मतलब डेली मंथली वीकली सब चार्ट्स पे इसके काफी अच्छे हैं। और इसने अब धीरे धीरे आज मोमेंटम लेना शुरू किया है बहुत दिनों के बाद। एंड एज हम लोग अभी डिस्कस कर ही रहे थे कि बहुत सारे लोग इस कोविड में बहुत सारे न्यू एंट्रेंट्स स्टार्ट आए किया हैं, है। सब लोग कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड हैज बिकम वेरी मच, सबको अब इसमें बहुत इंटरेस्ट आने लग गया है। तो HDFC AMC विल डू गुड इन कमिंग डेज। तो 22 के लिए ये एक बहुत अच्छा बेट हो सकता है। पारुल ने इसको टेक्निकल बताए HDFC AMC के, फंडामेंटली इट्स अ सुपर्ब स्टॉक। मतलब इसका ROCE ROE आर सुपर, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड PE रेशियो इज ऑलमोस्ट इक्वल टू इंडस्ट्री रेशियो। तो स्टॉक बहुत ज्यादा हाईली ओवर वैल्यूड भी नहीं है, तो डेफिनेटली वन कैन एंटर। और बहुत कंसोलिडेट के बाद में इट्स वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक। So excellent, Parul's two picks were Sona BLW and HDFC AMC. Thank you, Parul. We hope both are on the rocket and space पर ही जाके रुके ये दोनों ही। बिल्कुल, मैं भी चाहती हूँ। एकदम। So now over to Shubha for her two picks. Hello everyone, wish you a very happy new year. So we have spoken about Tata Motors, its ancillary parts. So where do we go from Tata Motors? We land up at real estate, and the main component of any real estate is cement. So my first pick for 2022 is India Cement. Fundamentally a strong stock, plus operationally also. Why? We see it already has a market cap of 5958 crores, which means a ranking of 12.4, which is very good ranking when we talk about fundamentals. Then coming back to the point, real estate is picking up as well as the infrastructure industry is picking up. So it's a cement company which is worth buying. Why? Because we see the prices are rising. When it comes to South India, it is 18% increase already.
And in Maharashtra, the rise has been 10% over the strong production discipline. Then we talk about the valuation. So when you see the market cap is 12.4 ranking, it means it's a valuation wise, it is a better risk reward. And being a boom market, the returns that any investor gets, like as Shukji also commented, the returns are invested in real estate then. And real estate increase means a boom for all the ancillary parts like cement, iron, everything. Then going back to the another point, the dividend payout ratio for this company has been static for more than 50%. And the last payout ratio was 56%. And if you see the markets, the 20 weeks moving average, it's formed a base above that. That means what? We see a positivity ratio. And why is it coming again in the last trimester? Because if you see Mr. Radhakrishnan Damani, the DMart, they've started investing in this share. And by December 21, end of that, if you see the reports presented to the SEBI, they have a what you call the listing or the thing that they have informed to the SEBI. It is that they have held 22.76%, and the promoters holding is only 28%, out of which 16% is pledged. So now the Damani Group has a better interest in this, a better control over this. So if I talk about the 1 to 3 years of span, short term and long term, being an income tax practitioner, I'll also take care of the tax part. In 1 year, I see a hike of about 60 to 70%. So we can book profits short term. If we go off the period for 2 years or 3 years, I expect this price, which is currently trading, the share trading at 200 rupees, to be trading at around 500 to 540 in a span of 2 years, or maybe 600. And in a span of 12 months, I see a rise of about 45 to 50% in this share. Plus, if you check on one thing, all leading cement companies are trading at a premium of 200 to 900%. Therefore, we see that this company also going to perform on the same thing. Because now if we take care of the markets, one is the Nifty index, which means the overall market, they check out what the investors are feeling. And one, it is also a sectoral market when we see the telecom market or the infrastructure market. So on that basis, I am of the thought that India Cement will be doing good, and I have a positive note on it. And in my PMS portfolio, this is one of the first shares that I have been investing in the past trimester. Now coming to the second pick, my second pick is Vodafone Idea. Why? Mobile phone is not a necessity anymore. Sorry, it's not a luxury anymore. It is a part of the roti thing. What do you call? And we all know that Vodafone has seen a payment crisis over the last few years. And suddenly when that payment crisis is dubbed off, what happens? The company starts operating better. All the tax related cases, they are getting disposed of. We see the government has already given them a AGR spectrum moratorium for 4 years. Secondly, their PLC, that is the Vodafone PLC, which is the mother company, the government, which was asking them for 10,000 crore of capital gain tax, has repelled it for a few years. Plus, they have got a bank guarantee by the DOT, that is the Department of Telecom, of 12,000 crores, which means their cash inflows are high. Their working process is better. The working capital is there. Plus, they have already repaid their unsecured, redeemable, non-convertible debentures, both principal and interest. And with the tariff increase, one of the major beneficiary telecom company is Vodafone out of the two. They have better operating income, better increase in the revenue. Secondly, they have inflow of cash flow. The liquid ratio is good. The quick ratio is good. And 5G technology being around the corner, I expect Vodafone Idea to see a next boom. Currently trading at 15 to 60. My idea is of a rise of another 60 to 65% in the next 8 to 10 months. That is approximately by the Diwali or maybe another month of that. And for the next 2 years, I'm expecting it in some triple digits. Because firstly, whenever a company has seen a stagnancy because of the funds,
and suddenly it gets all those deprivation removed. It starts performing better. The management has better operational ideas, better, they can actually use their planning and control over it. So from my side, it is India Cement and Vodafone Idea. Thank you. So very, very clear and precise presentation, Shubha. India Cements and Vodafone, और बहुत डिफरेंट स्टॉक्स भी है, बिकॉज हम लोग ग्रुप में यूजुअली ये दोनों स्टॉक उतना डिस्कस भी नहीं करते हैं, और वी हैव नॉट इन्वेस्टेड आल्सो, बट वन ऑफ आवर मेंबर्स हैज इन्वेस्टेड इन वोडाफोन 7.5 रुपए में. Correct. And I have also been investing from 9.40. Yeah. No, and my major I took it 14 rupees. 14. Okay. मेरे पास 10 रुपए से है. I have started buying from 9.54 rupees and still investing it then and not booking profit at the moment. अभी का क्या प्राइस है ये भी बता दो कोई. 15 to 16. हाँ, 15 से 16 के बीच में अभी. Yeah, and रहता India है. Cement is trading between 198 to 200 and Vodafone between 15 and 16. And if you see, there's already a consolidation point. Vodafone may be. So I will expect कि suddenly it will start that seeing the upper circuits any moment. If Shubhaji says, then I can share the charts. It is actually doing very I good have for no both problem. of them. See, I invest now, shares reading fundamentals I and all. have one You can. thing I have to say कि ये दोनों स्टॉक में बहुत पेशेंस चाहिए. मतलब ये रख के भूल जाने वाला शेयर है. मतलब वोडाफोन में मैंने जब इन्वेस्ट किया था ना, इट वाज लाइक ये मनी मेरा कहीं बाजार में गिर गया एंड आई हैव लॉस्ट इट. सो डोंट आस्क अबाउट इट एनी मोर. अगर वो हो गया तो इट्स अ मतलब लकी ड्रॉ, और अगर नहीं निकला तो वो मनी गया. But तो Parul, इस see, हिसाब से इस चीज को रखना होगा. Parul, like I said in my this speech or what you say, that 1 to 3 years, I have taken the Actually, span see, of long term. new people don't have that much of patience. उनको I agree, but मतलब वो नहीं Vodafone is रहता a है. very small capital investment, just 12 to 14 rupees if I take the average. And it means if I invest around a lakh of shares, it's just 12 lakhs. So that point of view, 12 lakhs is something which any mediocre person would like to get in. तो वही चीज है, इसीलिए ये बोलना. So absolutely everyone, please hold on to your investments, क्योंकि कल सुबह ये सारे stocks upper circuit पर होंगे, तो उस टाइम मत खरीदिएगा. थोड़ा रुकने के बाद खरीदिएगा. So जब भी मार्केट एक्सपर्ट्स After 9:30. हाँ नहीं मार्केट एक्सपर्ट्स जब कोई स्टॉक रेकमेंड करते हैं तो आप देखते हो कि एक स्पाइक हो जाता है. सो आई बी एक्सपेक्ट कि कल मार्केट जब खुलेगा तो वो स्पाइक हम लोग इन शेयर्स में देखेंगे. नहीं कविता, हम लोग लास्ट में बोलेंगे वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर. दीज वीडियोस आर ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस. Correct. Of course. Disclaimer. For educational purposes. Disclaimer. Yes, absolutely. So next we have our technical chart expert, Dolly. Over to you, Dolly. I'm just on logics, nothing else. कॉमन आदमी क्या सोचता है धंधे के बारे में? धंधे के बारे में वेल बिग वर्ड्स. ऐसा कोई बात नहीं है. इन सिंपल एंड स्ट्रेट यार, अपने पास पैसे पड़े हैं, पैसे का अपने एक अच्छा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. एंड हमारा मनी मैटर्स का ग्रुप इज लाइक ना अ बिग गॉसिप ग्रुप फॉर समथिंग प्रोडक्टिव. तो आओ बहनों, थोड़ी चुगली करें. 6 स्टॉक्स हो गए हैं, 2 स्टॉक्स और लेते हैं. And let's see what everyone has to say about it. देखो, मेरा फंडामेंटल टेक बहुत खराब है क्योंकि मैं शुरू से पढ़ाई में बहुत वीक थी. माय स्टडीज आर नॉट दैट गुड, बट या व्हेन आई सी समथिंग इन द मार्केट, मेरे लिए पता है स्टडीज वर लाइक हमेशा कि अच्छा मुझे अगर इतने % मिले तो मेरे को इस कॉलेज में जाना है, अगर उस कॉलेज में नहीं जाने दोगे तो मैं जबरदस्ती का पढ़ाई नहीं करने वाली. तो सेम इज विद स्टॉक्स. अगर मुझे इसमें दिख रहा है कि मुझे कुछ परसेंटेज गेन्स मिलने वाला है तो मैं इसमें माथा मारूं, नहीं मिलने वाला है तो उसमें देख के क्या फायदा. एज आई टेल एवरीबडी कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर मोमेंट पे 10 क्या हजारों स्टॉक्स हैं. तो अगर एक छूट जाता है ना तो उसके लिए प्लीज बुरा मत मानो, क्योंकि 9,999 स्टॉक्स और खड़े हैं आपकी राह में कि प्लीज मेरी तरफ भी देखो. तो 6 स्टॉक्स हमने देखे.
अभी 2 स्टॉक्स पे और ध्यान देते हैं. Like Suchi had shared regarding a broader Nifty sector of CNX IT. So my first pick is from part of CNX IT, that is HCL Technologies. जो Wow. मैंने लास्ट वीक भी ग्रुप में बोला शेयर था. किया था कि Infosys and HCL Tech, they are both gonna be a good bet. You can see a good rally in them. Major reason being उन्होंने ना एक प्राइस ब्रेकआउट दिया है. So let's quickly first get to the chart Charts. and then we will. मैं हर बार भूल जाती हूँ यार, स्क्रीन शेयर कहाँ से होता है. हो जो प्लीज कोई मेरे लिए स्क्रीन शेयर कहाँ पे है. more में जाके Right in the middle. हाँ मिल गया, सॉरी. Okay, I hope everyone can see the screen. Yeah. देखो मैंने इतनी मेहनत की है, इतने सारे स्टॉक्स में से 2 स्टॉक छांटा है. Wow. So be happy. So this is the first chart that we have for HCL Technologies. तो जो मैंने first HCL recommend किया था, that was this day. नहीं, मैंने एक्चुअली रेकमेंड यहाँ किया था जब इसने ब्रेकआउट को कंफर्म कर दिया था. फर्स्ट रीजन फॉर HCL टेक्नोलॉजीज वाज, इन्होंने जो अपना अक्टूबर में एक टॉप, सितंबर में इट मेड अ हाई, उसके बाद से इट वाज शोइंग अ करेक्टिव पैटर्न लाइक फॉलोइंग विथ निफ्टी. निफ्टी वाज आल्सो शोइंग अ डाउनसाइड मोमेंटम और अ करेक्टिव पैटर्न. जहां निफ्टी वाज स्टिल गोइंग ऑन अ डाउनसाइड, HCL Technologies came into a consolidation mode और a halt, जहां पे आपका गिरने का जो स्ट्रेंथ है उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था. और आप अगर ध्यान से देखो यहाँ नीचे का तरफ में जो आपका वॉल्यूम है, कैन एवरीबडी सी द वॉल्यूम एट द डाउन साइड? Yes. We have these small red and green Bars. blocks. Forget about the colors. The colors don't matter here. यहाँ पे सिर्फ आप ब्लॉक्स की साइजेस देखो. जो आपका ऑरेंज लाइन है वो है बेसिकली एवरेज वॉल्यूम एंड जो ब्लॉक्स है वो है आपका नॉर्मल वॉल्यूम. तो जो ब्लॉक्स है ना वो आपके एवरेज वॉल्यूम लाइन के नीचे ही चल रही है. तो दैट इम्प्लाइज कि इसमें अब बेचने में ना लोगों को उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है या लोग उतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. एंड अल्टीमेटली भाव बढ़ाने या गिराने के लिए यू नीड पार्टिसिपेशन. Correct. ये सब फ्रंट लाइनर स्टॉक्स है. तो यहाँ पे भाव में मोमेंटम तभी आता है व्हेन पीपल पार्टिसिपेट. इफ पीपल आर नॉट पार्टिसिपेटिंग द प्राइसेस विल नॉट मूव दैट मच. तो अगर प्राइसेस में कोई शिफ्ट आ रहा है एंड पीपल आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, मींस इट्स जस्ट काइंड ऑफ डिस्ट्रेस सेलिंग. या फिर अगर बढ़ते की तरफ होता है तो इट इज लाइक जस्ट अ पैनिक बाइंग कि भाई मुझे लेना है, कुछ नहीं मिल रहा है तो यही ले लो, मार के ले लो, बस ले लो. तो उसमें ना वो स्ट्रेंथ नहीं होती है. सिमिलरली यहाँ के फॉल में वो स्ट्रेंथ नहीं थी. एंड कहीं ना कहीं इसने जो एक ये कंसोलिडेशन पैटर्न बनाया है, लाइक से एक लाइन ये है अपनी और एक ये ऊपर वाली ब्लैक लाइन है. तो ये जो कंसोलिडेशन फेज इसने किया है वहां पे वॉल्यूम नहीं थी. एंड देन वी सॉ अ ब्रेकआउट फ्रॉम दिस पैटर्न, एक्सक्यूज मी, on 22nd of December. But again, although आपका वॉल्यूम इसमें था, बट जितना वॉल्यूम अपने को चाहिए था, पार्टिसिपेशन चाहिए था, उतना वॉल्यूम नहीं था. इट वाज अ मूविंग एवरेज. आपका जो इसका एवरेज वॉल्यूम था उसके ऊपर था एंड इट गेव अ डिसाइसिव ब्रेकआउट. 2 दिन उसके ऊपर चला है एंड देन इट इज अ कंफर्मेशन दैट यस, नाउ द प्राइस हैज गिवन अ शॉर्ट टर्म बॉटमिंग आउट पैटर्न एंड यहाँ से इट इज रेडी फॉर अ रैली अगेन. Yes. द थर्ड डे ये जो हमारा गैप लेके इतना हाई वॉल्यूम पार्टिसिपेशन जो इसने आया है, दैट इज 24th of December. यू कैन सी लास्ट पिछले 2 महीने में इसमें इतना वॉल्यूम में काम नहीं हुआ था जितना उस दिन काम हुआ. प्लस इट वाज सपोर्टेड बाय अ गैप. तो जब भी इस टाइप का मूवमेंट्स आता है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग बिग प्ले गोइंग अराउंड इन द मार्केट.
and it is showing some big buying thing happening. So ये है अपना daily charts. Now if we go on a weekly setup में अपने एक ये रिवर्सल हो गया, मतलब एक करेक्शन कंप्लीट है. Now it is heading for its resistance zone, that is its का last high, which is out here. So what we can see is, abhi I will not ask anybody to, yeah, it is not a fresh buy because आपका risk reward ratio इसको बिल्कुल support नहीं करेगा. ऊपर की तरफ 1378 or let's take it to be 1370 से 1385 would be my resistance zone. तो any I would say किसी ने अगर 1250 के लेवल पे कोई ट्रेड इनिशिएट किया है तो they can move out of that trade. Remember, I am talking about traders and not investors. The big difference between traders and investors is traders को सिर्फ क्या चाहिए, मोमेंटम चाहिए. भाई हम घुसे 10-15% आया, घर में लिया, निकल गए. इन्वेस्टर्स होते हैं हम घुस गए और हमने छोड़ दिया उसको, हमको उसके बाद मतलब नहीं है. What पारुल जी said, she is an investor. ये मुझे लेके भूल जाना है. And being, although I am a technical analyst, but मैंने safe side लिया है. I am here with a company जो मुझे पता है भाई बड़ी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, मेरे पैसे डूबने वाले नहीं है अगर मैंने इसका फंडामेंटल चेकअप नहीं भी किया है तो. So even if I get stuck with this company, my money, my capital is safe. So let's keep it that way. So effectively, this company is here for a turnaround. आपका CNX IT is performing pretty well क्योंकि CNX IT is giving you a new high every day. And HCL Tech ने अभी तक अपने last high को breach नहीं किया है. Excuse me. So when HCL Tech will be breaching its last high, it will have a much more potential buying opportunity और much more बोलते ना volume. अब जैसे क्या होता है ना, join your class. आपके पास सेम डेस्टिनेशन की 4 बसेस खड़ी है. आप पहली बस निकल गई, दूसरी बस निकल गई. अब जो तीसरी बस खड़ी है जब वो चलेगी तो बाकी जो पीछे रह गए हैं वो 2 बस में तो नहीं चढ़े, तीसरे में तो सारे घुसेंगे ना. तो इट इज लाइक जो पीछे रह गए हैं, आईटी में आपका इन्फोसिस परफॉर्म करके भाग गया, टीसीएस परफॉर्म करके भाग गया. अब जब एचसीएल टेक मूव करना चालू करेगा, जो इन्फोसिस और टीसीएस में नहीं घुस पाए थे उनको लगेगा देखो पूरा आईटी पैक भाग रहा है, 2 बड़े काउंटर तो भाग गए, अब अपने को इसमें घुसना है, अपने को ये बस नहीं मिस करनी है. सो वी हैव टू गेट ऑन टू दैट बस. सो उसमें एक बार में यू विल सी अ वॉल्यूम बाइंग and that will trigger the pressure. And आपके जो prices होते हैं, जहां आपको normal 4 to 5% रैली दिखनी चाहिए, वहां पे आपको आराम से 10 to 15% रैली देखने को मिल सकती है in a very short span of time. And mind it again, I am saying this, if it gives a closing above 1385 or a weekly closing above 1360, that will trigger your fresh buying position. ये तो हो गई आपकी प्रॉपर चार्ट्स की बात. एक ना मैंने स्टॉकेज पे सर ने एक बहुत अच्छी चीज हम लोग को दिखाई है, तो आई विल जस्ट शेयर इट विथ यू ऑल. And this is all free wala thing in stockage. This is not a paid stuff. Anybody can load stockage and they can see this thing. Can everybody see this? HCL Technologies वाला जो मैंने खोला है. Yes. इसका आप लोग अगर डेली डिलीवरी देखोगे तो it is more than 40%. Last 1 week से बेस, last 10 days का average delivery is more than 40%, which is a very healthy thing. अपने लोग के लिए डिलीवरी क्यों इम्पोर्टेंट होती है कि अल्टीमेटली आप उस चीज को अपने साथ घर लेके जा रहे हो. जब आप चीज को अपने साथ घर लेके जाते हो तो आपको उस पर भरोसा होता है, तभी आप उसका पोजीशन कैरी करते हो, नहीं तो आप डे टू डे में उसको स्क्वायर अप कर दोगे.
So if more than 40% of people are carrying their trades home, that means they have faith that it will fetch you better returns. This is one part. Second part, आप अगर देखो last 1 week में HCL Technologies has outperformed the IT part. आपका Nifty IT index has performed 2.6%, whereas HCL Technologies has performed 3.86. Last 1 month में Nifty IT has performed 9.8, whereas HCL Technologies has performed 13.8. So it is not only outperforming the markets, it is also outperforming its index, which is again a win-win situation. And ये fundamental वाला चीज जो मैंने आप लोग से सीखा था PE में, please correct me if I'm wrong, इसका industry PE is saying say 37 and जहाँ इसका PE is 31. So effectively it is not overvalued also. Agreed? Please, Yes. हाँ ना बोलो. I'm saying the first thing about fundamentals. Yes, Dolly. Yeah, Yes. absolutely. So basically we are not banking on an overvalued company. Overvalued company में अपने अगर बैंक करते हैं तो there is कहीं ना कहीं मन में एक डर होता है कि उसमें कहीं एक sell off आएगी या फिर prices over inflate होके रखे हैं. Correct. So basically when I was checking on the IT pack कि मैं किस company के बारे में बात करूं, may it be Wipro, may it be Infosys, TCS और HCL Tech, out of the 4 मेरे को HCL Tech सबसे ज्यादा better और safer bet लगा in terms of performance. So my I would first just like to add one thing here कि जो Yes. डिलीवरी वॉल्यूम आपने दिखाया वो फ्यूचर्स में ये स्टॉक लिस्टेड होने के बाद भी जो ये 40-50% डिलीवरी दिखा रहा है वो बहुत फैबुलस है. मतलब इट इज अ वेरी वेरी बुलिश एंड अ रिमार्केबल पॉइंट टू बी नोटेड. Yes. Yeah. Okay. Acha, so my first pick was this HCL Technologies. Second pick is LIC Housing Finance. देखो मैंने दोनों सेफ साइड लिया है. अपने को पता है रियलिटी अच्छा बूम में है, IT अच्छा परफॉर्म कर रहा है. तो रियलिटी को रियलिटी को सपोर्ट करने के लिए अपने को सब कुछ चाहिए, बट अल्टीमेटली चाहिए तो पैसा. सब पैसा का खेल है भैया. पैसा कहाँ से आएगा? पैसा देगा बैंक्स या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. So can we simply say कि LIC Housing Finance could be a good bet? Let's first go to the charts and then we will talk about other things. आ गया मेरा LIC. ये कौन सा खुल गया भाई? सॉरी, हाँ कहाँ गया? Let's go on a daily chart setup first. आप अगर see LIC अभी के हिसाब से it is somewhat what we call a bottom fishing candidate. Okay, it is kind of a risky bet, but मेरे हिसाब से ये कहीं ना कहीं काफी beaten down है and इसमें एक bounce आने का probability या chance बहुत अच्छा है. So I am taking 2 stocks, one which is above the resistance zone and it is supposed to outperform the market, and second stock is one which is beaten down a lot. So my risk reward ratio is very much favorable क्योंकि वो अपने support के पास trade कर रहा है. So LIC Housing Finance, मेरा first reason is sorry, my network is a bit slow. The charts are not getting updated. Huge volumes. Yes. Isn't this making head and shoulder? It's clearly showing It is making head and shoulder, but जब तक ये अपना support line पे खड़ा है, this head and shoulder is not a breach. First, तभी मैंने बोला ना, it is kind of a bottom fishing.
I am expecting कि it will not break down the head and shoulder pattern and it will move up. I will give you the supportive reasons why. First, we can see a clear divergence. आपका यहाँ पे Dolly, you have 3 minutes, huh? Yeah, sure. I'll just take 2 more minutes to complete this. What I am expecting is, first thing, iska reason for buying, risk reward ratio. If you enter this stock, my first and last stop loss would be this trend line that comes at 355 to 360 levels. And there is a very high probability that it breaks out of this channel. Reason being, I am very much bullish on Nifty. And क्योंकि it is showing a continuous divergence in my indicators, that means अभी जो इसमें fall आ रहा है, आप अगर इसका वॉल्यूम पे ध्यान दोगे तो इसमें फॉलिंग साइड में वॉल्यूम पार्टिसिपेशन धीरे धीरे बहुत ड्राई अप हो रहा है. इसमें उतना वॉल्यूम पार्टिसिपेशन नहीं है. So although being a risky bet, there is a high probability that it will perform well, and once इसमें एक buying चालू होगी, people will start buying. Just give me 1 moment's time, please. Yes, sir. अच्छा, अभी जैसे डॉली ने बोला ना कि इसमें वॉल्यूम ड्राई हो रहा है, हाँ. तो अभी बहुत रिसेंटली मैंने अपने एक मेंटोर से ये चीज सुना है कि जब वॉल्यूम बहुत ड्राई होने लगे, मतलब कि ब्रेकआउट आने का टाइम हो गया. Okay. तो दिस इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव कि वॉल्यूम ड्राई हो रहा है. और वो वॉल्यूम इसलिए क्योंकि उसमें से सारे रिटेल इन्वेस्टर्स निकल जाते हैं, और इसमें ये धीरे धीरे जो बाइंग होती रहती है छोटे छोटे, वो आपके बड़े इन्वेस्टर्स करते रहते हैं, बिग फिशेस. तो अब ये एंड यू सी इसमें एक डोजी भी बनी है लास्ट. इसमें अपना लास्ट डे आज वाला जो कैंडल है वो एक डोजी बना है, मतलब इट इज स्टिल इनडिसाइसिव. एंड इसमें आपका जितना भी ग्रीन कैंडल्स है उसका ग्रीन कैंडल्स इन द सेंस जिस दिन आपकी क्लोजिंग आपकी ओपनिंग से ज्यादा है, उस दिन के आप वॉल्यूम्स देखिए ज्यादा है देन द रेड वंस. तो इसका मतलब ये है कि लोग जब बाय कर रहे हैं ना, कन्विक्शन से कर रहे हैं, लेकिन जब लोग बेच रहे हैं उस वक्त लोगों का पार्टिसिपेशन उतना ज्यादा नहीं है. So it is a high probability that it might give a breakout. And but yes, again I'm saying because it is trading on the support, so this support level, this level becomes very much, जब आपका 367 या 368 तोड़ता है तो you shed off 50% of your investment. If it breaches 355 level, then you just move out of the stock. It is a request because we are bottom fishing, so we don't want to be trapped. अपने दोबारा आ जाएंगे अगर इसमें पार्टिसिपेशन हुआ तो, लेकिन अगर 355 तोड़ देता है decisively, we will move out of the stock. One more reason why I'm banking on the stock is again due to the stock exchange. Yeah, I'll tell you why. आप अगर इसका शेयर होल्डिंग वाला चीज देखो, सितंबर क्वार्टर में इसका जो प्रमोटर है दैट इज LIC holds one of the major stakes out here. They have increased 5% stake in the company. So कभी भी जब प्रमोटर अपना स्टेक इंक्रीज करता है ना कंपनी में, that means they are seeing something better moving in the company. So they increase the stake in the company. That means they still have the hope that my company is being undervalued, I should buy back my shares. It will add value to me later on. So because the promoters have been buying stakes in the company, so this is actually a very good time to get into the stocks. Rather, I would say you are getting the stocks actually at a very cheap level. So it is definitely
worth giving it a shot. So LIC Housing Finance would be my second pick. It is worth a buy. 379 is the closing price for the day. If it breaches 365, 367 level, shed off 50% of your investment. If breaches 355, please move out and wait. Or else just enjoy the rallies. You are really heading for a 20 to 25% gains in a very short span of time. I'm done. I can't speak. I'm just... Excellent, Dolly. So thank you so much. So Dolly's picks were HCL Tech and LIC Housing Finance. So both big companies. Thank you so much, Dolly, for this. And now the last one, Suman. So थोड़ा fun quotient आने वाला है. फन क्वेश्चन ऐसा कि किसी को भी यहाँ पर डॉली का इतना बड़ा प्रेजेंटेशन देख करके लगा शी वाज नॉट अ गुड स्टूडेंट. ओ माय गॉड. मैं टेक्निकल्स तो शी इज द एक्सपर्ट ऑन शी जस्ट बैंग ऑन एवरीथिंग. मतलब टेक्निकल्स इतना अच्छा से एक्सप्लेन किया है इसने. और चलो कुछ छूट गया तो इसको पढ़ा देते हैं. तो टेक्निकल्स के बाद में व्हाट आई पर्सनली फील, हम लोग टेक्निकल्स को तब फॉलो करते हैं जब हम लोग को शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव होता है या हम लोग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से हम लोग एंटर करते हैं कि स्टॉक कैसे प्रेजेंट कर रहा था अपने आप को लास्ट फ्यू 1-2 महीने में 3 महीने में. लॉन्ग टर्म के लिए जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग इनका मंथली चार्ट देखते हैं, ठीक है. बट लॉन्ग टर्म को देखने के लिए मंथली चार्ट के साथ साथ you have to see the fundamentals of the company very well, because कंपनी के पास अगर कोई बिजनेस है और कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है तब तो वो लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करेगा. सो माय बेसिकली व्यू इज मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल्स रेदर टेक्निकल में मैं जाती हूँ जब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल. लेकिन व्हाट टू बाय इसके लिए फंडामेंटल कंपनी का देखना ही है. एंड जैसे अभी अपने लोगों ने ऑलमोस्ट वी हैव टॉक्ड अबाउट द 8 स्टॉक, फिलिप्स कार्बन, सोना BLW, जेन उसके बाद में HDFC AMC, इंडिया सीमेंट, टाटा मोटर्स, वोडाफोन फाइनली, एंड देन HCL टेक और लास्ट LIC हाउसिंग फाइनेंस. अब ये सारी कंपनीज चलाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? इंडस्ट्री तो इतनी सारी बैठा ली, एनर्जी के बिना, पावर के बिना चलेगी. सो माय sector is power here, energy, and the top most जो बिल्कुल different है energy में, ऐसे तो टाटा मोटर्स, टाटा पावर है या बहुत सारे अडानी पावर्स है, but there is one company which is actually not making or manufacturing any kind of energy, it's just trading. जैसे हमारे पास में NSE या BSE स्टॉक को ट्रेड करने के लिए एनर्जी को You caught me. It's like जो सुमन जी लाते हैं ना हमारे ग्रुप में, energy with lots of energy. That's the stock. So this is the stock energy के लिए IEX, Indian Energy Exchange, जो अपने आप में एकदम different and it's a monopoly company. ऐसे तो NSE ने भी अपना एक एक्सचेंज लेकर के आया है where the energy is trading just 5%, बाकी का 95% IEX पे ट्रेड होता है. तो मैं थोड़ा सा एक लाइट डालना चाहूंगी IEX के ऊपर में, बिकॉज पीपल मे नॉट बी नोइंग अबाउट व्हाट IEX एक्चुअली. जैसे हम NSE और BSE में शेयर को बेचते हैं, एक बंदा शेयर को बेचता है, एक को खरीदता है, उनके बीच में एक ऑक्शन होता है, एक बेट होती है, बिड प्राइस होता है और लोग का ट्रांसफर करते हैं. वैसे ही एनर्जी में जिनके पास में एक्सेस एनर्जी है, जिस स्टेट के पास में या किसी के भी पास में हुआ मेकिंग दोज एनर्जी, और जिनके पास में एक्सेस है, दे कैन रियल टाइम स्पॉट कर सकते हैं एनर्जी को ओवर IEX. ठीक है, IEX एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको अपने रियल टाइम स्पॉट कर सकते हैं. तो किसी को भी किसी तरीके का लॉन्ग टर्म किसी भी तरीके के रूल्स के अंदर में या लॉन्ग टर्म कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में बंधने की जरूरत नहीं होती है. नहीं तो ट्रेडिशनली क्या होता है, पीपल आर बाउंड विद द लॉन्ग टर्म ट्रेडिशन and contract with the other like CESCA या other power generating companies के साथ में. 2022 के स्टॉक के लिए IEX को चूज करने का रीजन एक और भी है. रीजन ये है कि हम लोग सब कोई टेक की होते जा रहे हैं. IEX जो है स्पॉट करता है, एनर्जी को बेच रहा है, जिसके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप फिजिकली एनर्जी को खरीद सकते हैं. ठीक है, इसको मैं शो करती हूँ एक चार्ट के थ्रू. मैं एक बार जस्ट अ सेकेंड, मैं I'll share my screen.
I hope everyone can share my Yes, see yes. my screen, right? Yeah. Yes. Clear है? अभी मार्केट कैप इज 23,523 करोड़, ठीक है। मार्केट कैप के हिसाब से दिस इज ऑलरेडी अ लार्ज कैप कंपनी, लेकिन एक एएसएम होता है, एएसएम के अंडर में ये ऑलरेडी मतलब ये अभी एक स्मॉल कैप कंपनी है, ओके। तो जब एएसएम का एक वहां पे एक सामने से एक रूल आने वाला है, कुछ चेंजेस आने वाले हैं, अकॉर्डिंगली जिसके इसको मिड कैप से सॉरी स्मॉल कैप से मिड कैप में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जैसे ही इसको मिड कैप में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, बिकॉज ऑफ द राइजिंग मार्केट कैपिटल साइज, सारे म्यूचुअल फंड लाइक एचडीएफसी, एएमसी और सभी कोई आकर के इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे। वंस दे विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग, शेयर प्राइस विल गो हाई। एक बहुत बड़ा हमारे पास में रीजन है। उसके बाद में जस्ट बिकॉज ऑफ द रिन्यूअल, जैसे अभी गवर्नमेंट के इतने सारे लॉज आ रहे हैं, गवर्नमेंट आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स द ईवी एंड द रिन्यूएबल सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जीज। तो इसके लिए भी अपने पास में आईएक्स का डिमांड जो है बहुत ज्यादा, मतलब मल्टी बैगर स्टॉक इसने प्रूव किया अपने आप को, मतलब इट लाइक मैंने शायद आई थिंक 50 या 55 रुपीज से मैं इसको होल्ड कर रही थी, एंड देन स्टॉक गोज टू 900 रुपीज, और उसके बाद में इसने अच्छा खासा बोनस दिया एंड इट केम डाउन टू अराउंड 290 लेवल्स, और उसके बाद में स्टॉक ने एक बहुत बड़ी सारी रेड कैंडल दिखाई है वेरी नेक्स्ट डे। आई विल शो इट। अच्छा, आप एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे देख रहे हैं, प्रमोटर होल्डिंग इज 0, तो नो नीड टू वरी अबाउट इट। मतलब जनरली अगर किसी भी कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग 0 होता है, मतलब प्रमोटर होल्डिंग का एक होना एक पॉजिटिव साइन है कि प्रमोटर है तो प्रमोटर का लोगों का एक ट्रस्ट जमा होता है, बट ये वाला जो है ये प्रोफेशनली केयर टेकिंग के अंदर में मैनेज्ड है, ओके। सो दैट इज नॉट द बिग पॉइंट हियर। अब इसके चार्ट्स को इफ आई सी, एक सेकेंड मैं इसको रिड्यूस कर दूं, ये अपने 50 डे डीएमए के ऊपर में ट्रेड कर रहा है, ओके। चार्टिकली आई एम शोइंग ये अभी काफी स्ट्रॉन्ग शो करा, इवन आफ्टर शोइंग आफ्टर सो मच ऑफ कंसोलिडेशन। मतलब जब अपने 290 लेवल के नीचे ये शेयर आया था, उसके बाद में 230 से लेकर के 250 के रेंज बाउंड में ये बहुत दिन से ऑलमोस्ट 1.5 मंथ से ये कंसोलिडेट कर रहा है, नाउ इट्स गोइंग अबव द 50 डीएमए, ओके। कंपनी के प्रॉस, कोई डेप्ट फ्री कंपनी है, कंपनी धीरे धीरे अपने डेप्ट को रिड्यूस कर रही है, क्वार्टर एंड क्वार्टर इसके सेल्स बढ़ते जा रहे हैं, क्वार्टर एंड क्वार्टर इसके प्रॉफिट्स बढ़ते जा रहे हैं। आरओई एंड आरओसीई अगर मैं दोनों दिखाऊं तो बोथ आर इन डबल डिजिट, 59.7% ROCE and 46.2% ROE which is commendable। मतलब अगर हम डबल डिजिट में नॉर्मली इस टाइप की कंपनीज में हम देखते हैं 11, 12, 15% के ROE या 20% पर ROE मिलता है हमें, जिसके इसमें ROCE हमें 59% पे मिल रहा है, ओके। या क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो सेल्स कंसोलिडेटेड है, ये सेल्स इसमें ईयर ऑन ईयर सेल्स में इंप्रूवमेंट आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो क्वार्टरली आप देखिए जून के बाद में सितंबर में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया। प्रॉफिट एंड लॉस में आप देखिए ईयर ऑन ईयर इसका टीटीएम देखिए 317 के बाद में 380, 259 के बाद में 325 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके बाद में मतलब if you have any idea about the fundamentals, how you read the balance sheet of the company, मतलब बैलेंस शीट इज कमेंडेबल। इस प्रकार कंपनी ने अपने आप को मेंटेन किया है 2021 में कि ये छोटा सा कंसोलिडेशन इज नथिंग। इसके अलावा मैं एक और चीज मैंने इसके बारे में पढ़ी थी विच आई टेल यू ऑल अबाउट दिस, जस्ट अ सेकेंड। इंडिया का जो पावर इंडेक्स है which is almost 69%, okay, 59% surge in this year 2021 just because कि गवर्नमेंट में जो पावर सेक्टर के अंदर में अभी उन्होंने ग्रोथ पर्सपेक्टिव के हिसाब से इसके ऊपर में एक बोला है कि हम लोग अभी तक 5% एनर्जी जो रिन्यूएबल एनर्जी को यूज कर रहे हैं, दे विल इंक्रीज दिस एनर्जी फ्रॉम 5% to 25%। तो हम नेक्स्ट 2-3 years में इसमें बहुत अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ लीविंग IEX हियर। मुझे लगता है कि एंट्री लेवल के हिसाब से ये बहुत अच्छा टाइम है। those who have not invested yet they can, but एक छोटे छोटे चंक में अगर आपका जो भी एक्सपेक्टेशन है इसके अंदर में मतलब जितना भी आपको अमाउंट इसके अंदर में इन्वेस्ट करना है, जस्ट ट्राई यूजिंग 1/5 entering after 1/5 investing in it,
उसके बाद में धीरे धीरे छोटे छोटे चंक्स में यू कैन इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट। ये कंपनी आगे जाके बहुत अच्छा रिटर्न देने वाली है फॉर श्योर। एनी डाउट्स अबाउट इट? चलो मैं नेक्स्ट। Not at all. No, never with IEX. Never with IEX, right? Never with IEX, yes. Why? How will I go back to again that page? Okay, इसको बंद करो स्क्रीन को। just a second. Right. And the next stock is from the IT sector. IT सेक्टर में इतना बूम इस कंपनी ने दिया है, आई डोंट थिंक कि जो भी स्टॉक मार्केट के अंदर में 20-21 में पैसा लगाया है वो इस शेयर से दूर रहा होगा। एंड द शेयर नेम इज हैप्पीएस्ट माइंड। हाँ, अपने आप खुश हो जाता नाम सुन के ही कंपनी का। अशोक सुटा जी हु इज द चेयरमैन ऑफ दिस कंपनी, ही वाज वर्किंग इन विप्रो फॉर 15 years एंड 15 साल में विप्रो के एक्सपीरियंस के बाद में he was the president of Mindtree, और Mindtree में 2-3 साल के परफॉर्मेंस के बाद में he just came up with his own company and now he is the chairman of this company, Happiest Mind. Happiest Mind, अब इसको मैं बताती हूँ इसका बिजनेस क्या है। इट्स कंप्लीटली SaaS प्लेटफॉर्म है इसका, सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर एज सर्विस। ओके, इसमें बेसिकली 95% इनका रेवेन्यू ड्रिवन होता है डिजिटल बेस से। ओके, जबकि TCS, HCL टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा और जो भी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं उनका 37 से 38 और मे बी इट्स Mindtree, ठीक है, उनका 37 से 38% रेवेन्यू ड्रिवन डिजिटल प्लेटफॉर्म से होता है, जिसका 37-38% स्टेक वेटेज 37-38% डिजिटल में है। बट इट्स नॉट द केस विथ हैप्पीएस्ट माइंड। हैप्पीएस्ट माइंड का 95% वेटेज है डिजिटली। ओके, डिजिटल वेटेज है, जो कि यूएस से इसका 78% रेवेन्यू ड्रिवन होता है। जब हमारा स्टॉक मार्केट जो है हम पूरा का पूरा देख रहे हैं, डाउ जॉन का कंपनी वहां पर पैसा कमा रहा है और उसको देख करके हमारा यहाँ इंडियन स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है। राइट सुबह, ऐसा ही कुछ बोला था तुमने स्टार्टिंग में। तो बिल्कुल ये बिल्कुल वैसा ही है। जितनी भी हमारा मतलब इंडिया के अंदर में कितना भी ओमिक्रॉन को लेकर के डिस्टर्बेंस आ जाए या किसी भी इंडस्ट्री को लेकर के डिस्टर्बेंस आ जाए, जो 2020 में 21 में हुआ था, आईटी कहीं पर भी हिलने वाला नहीं है, बिकॉज आईटी का 78% रेवेन्यू यूके और यूएस से आ रहा है। जितने भी आईटी कंपनीज है, मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनीज आर सर्विंग टू यूएस और यूके। सेम इज विद द Mindtree। अच्छा, इसका हैप्पीएस्ट माइंड, सॉरी I'll again share my screen. Suman, this is one stock I just watched. ये पता नहीं इस स्टॉक के साथ में कुछ ऐसा है कि लोग इसको लेना चाहते हैं पर एंटर नहीं कर पाते हैं। वो बस बढ़े ही जा रहे हैं, सोचते रह जाते हैं। हाँ, ये बढ़े ही जा रहा है This is out of a grip share जो हम बोलते हैं ना, लगा के रखो तब आया तो आया। नहीं, इसमें ऐसा हुआ कि कंपनी ने 130-135 रुपए के आसपास अपना आईपीओ निकाला था, जो लिस्ट हुआ था 333 रुपीज पे। ओके, और उसके बाद में कंपनी ने मतलब कभी कोई सेटबैक नहीं देखा, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मतलब द प्राइस वाज मल्टी, इसको हम बोल सकते हैं कि मल्टीफोल्ड रिटर्न। अगर मल्टी बैगर कंपनी अगर या मल्टीफोल्ड रिटर्न अगर किसी ने दिया है तो हैप्पीएस्ट माइंड ने दिया है। और इसने 643% का रिटर्न दिया है 2021 में, जिसकी वजह से सितंबर अक्टूबर 2021 में इस कंपनी को एक सर्विलियंस होता है, ASM लिस्ट। ओके, इट्स एन एडिशनल सर्विलियंस लिस्ट, इस लिस्ट के अंदर में डाल दिया गया था। एंड दिस इज द रीजन गिरा भी था। हाँ, कंपनी 2 महीने पहले सितंबर के बाद में करेक्ट करते, नहीं तो कंपनी में कोई भी बैड न्यूज नहीं था। इसका सेकेंड क्वार्टर वाज लाइक ऑसम, बहुत ऑसम रिजल्ट दिया था सेकेंड क्वार्टर में। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका मार्केट कैप है 19,695 करोड़, विच इज द मिड कैप कंपनी। ROCE एंड ROE डबल डिजिट में है। प्रमोटर होल्डिंग इज 53.2%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 163%। कंपनी ने कोई अपने प्लेज नहीं रखा है। एंड डेट टू इक्विटी इज ऑल्सो 0.35%, विच इज वेरी गुड। रिटर्न ओवर 3 ईयर यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, बिकॉज कंपनी को 1.5 साल हुआ लिस्ट हुए। कंपनी अब करता क्या? कंपनी बेसिकली
AI के अंदर में है कंपनी, बेसिकली रोबोटिक्स के अंदर में है, ऑटोमोशन के अंदर में है और फ्यूचरिस्टिक है। तो जैसा हम जानते हैं ना, हमारे बच्चे फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं, हम लोग इतने फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं, तो दिस इज द रीजन ये कंपनी चूज किया है, क्योंकि एक बार अगर ये ASM लिस्ट से निकलेगा तो उसके बाद में इसको कोई रोक नहीं पाएगा। अभी भी उसी लिस्ट में है? अभी भी उस लिस्ट में है, बट इस लिस्ट का एक 3 मंथ्स का पीरियड होता है। 3 मंथ्स के पीरियड में ये कंपनी जो है ये अलग 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 ब्लॉक में जाती है। मतलब फर्स्ट इसका क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट अच्छा, आपका डाइवर्जेंस चालू कर दिया है सुमन जी, डोंट वरी। हाँ, डाइवर्जन चालू हो गया ना। आई फील कि 15-20 डेज में ये ASM लिस्ट से बाहर आ जाएगी, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 2.2 मंथ, आई थिंक 2 मंथ्स 2 महीने से ऊपर हो गया। 2 महीने से ऊपर हो गया। ओके, तो जो सारे छूट गए थे सब कूदना चालू कर दो। हाँ। सब कूदना चालू कर दो। अब देखो कंपनी यहाँ पर 50 DMA से अभी ऊपर निकला है, मतलब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंसोलिडेट फेस में था ऑलमोस्ट। आप देखो अक्टूबर से लेकर के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ तक जो इसका ASM पीरियड था उसमें ये कंसोलिडेट पे था, और उसके बाद में इसने अभी 50 DMA को क्रॉस करके ये कंपनी बाहर आई है। लास्ट 2 डेज से, लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन से ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। इसके मतलब इन्होंने 3 ट्रेडिंग सेशन में 3 ग्रीन कैंडल्स बनाए हैं। आई थिंक yesterday it was 2.3% up, today again it was around 2% up. ध्यान से देखोगे तो छोटू सा लास्ट 15 दिन का चार्ट में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स है, वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। कम, अच्छा मैं इसका चार्ट भी शो करती हूँ आपको, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। डॉली, वो जो एक मीम आया था ना लाइटनिंग का, that was meant for you. हमें तो भेजा था, हाँ, हमें भेजा था। that was meant for you. राइट, मैं able to see the chart ना? Yes, yes. यहाँ पे देखो डॉली, you're talking about this? Yes, you can call it a channel or a inverted head and shoulder, whatever the way it is. क्योंकि इसका जो shoulder है, that is almost equivalent to the head, the right shoulder, what we call. अभी अपने इसको वीकली टाइम फ्रेम के अगर में देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए 18 अक्टूबर के बाद में इसने जो अपने 50 DMA के लाइन को क्रॉस किया था, उसके बाद में लोएस्ट होते 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 ये 3 दिन से ऑलमोस्ट, जस्ट अ सेकेंड, आई विल शो द डेज चार्ट। इसका RSI इज अराउंड अभी 61 पर है। तो डॉली, खरीदने का टाइम है ना? आज का जो लो है, that will be the stop loss. आज का जो लो है, that it was around लो, इसने अपना लोअर शायद 1330 के अराउंड में कुछ बनाया था। क्योंकि बेसिकली कल इसने ब्रेकआउट देने का कोशिश किया है विद वॉल्यूम्स, आज वॉल्यूम सपोर्ट नहीं किया, प्राइसेस वर अ बिट शेकी, गिरा भी नहीं है तो बढ़ा भी नहीं है, तो आज का लो विल बी आपका स्टॉप लॉस फॉर टुमारोज ट्रेडिंग सेशन। एंड आई विल सजेस्ट इफ एनीबडी वांट्स टू बाय आफ्टर 9:30 इन द मॉर्निंग, इंट्राडे वाइज आपका 9:15 to 9:30 का जो लो रहेगा, कीप दैट एज योर स्टॉप लॉस। करेक्ट। तो इस पे एंट्री का बहुत अच्छा टाइम है अपने पास में, लेकिन विद अ मिनिमम टाइम फ्रेम ऑफ 1 to 2 ईयर। अगर आपको 2-3 महीने के लिए खरीदना है तो स्टॉक पे प्लीज डोंट इंटर। 2-5% के रिटर्न के लिए प्लीज डोंट इंटर। अभी इसको या तो ASM लिस्ट से निकल जाने दीजिए, निकलने के बाद में यू सी द चार्ट, इसका मूव देखिए, देन यू एंटर। बट इसको छोटे छोटे चंक्स में, मतलब इट्स अ मस्ट बाय स्टॉक फॉर योर पोर्टफोलियो। SIP बना ले इसमें, इसको SIP बना सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि अभी जैसे IT में हम लोगों से सुनते आ रहे हैं कि सब कुछ ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला गया है IT, और IT एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन आप अभी यहाँ पर देखो IT कहीं नहीं जाने वाला है। आप घर में बैठ करके हम और आप बात कर पा रहे हैं तो ये सॉफ्टवेयर के कारण। अभी हाँ, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये सॉफ्टवेयर के कारण, तो इसके बिना तो काम चलने वाला है नहीं। ये कहीं पर भी आपका नेगेटिव रिटर्न आपको नहीं देगा फ्यूचर में। एंड यू सी, मतलब कंपनी इतना अच्छा ग्रोथ पर्सपेक्टिव के साथ में आगे बढ़ रही है, सच अ ब्यूटीफुल कंपनी। आप यू जस्ट सी द रिजर्व देखिए कंपनी के, 220 करोड़, 518 करोड़ मार्च 2021, देन 555 करोड़, 508 लाइबिलिटी देखिए यहाँ पर। सॉरी, एक सेकेंड, आपको मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिखाती हूँ उसका। 14%, 25%, देन 25%। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 175%, यहाँ पे देखिए 75 करोड़, 186 करोड़ एंड देन 214 करोड़।
मतलब कंपनी ने अपना सेकंड क्वार्टर रिजल्ट इतना अच्छा दिया है, उसके बाद में भी कंपनी बहुत कंसोलिडेट चला गया जस्ट बिकॉज ऑफ द सर्विलियंस। तो जैसे ही ये सर्विलियंस से बाहर आएगा, इट विल गिव अ ब्रेकआउट। So great stocks, Suman, IEX and Happiest Mind. I am quite bullish on both the stocks. Both. मतलब power sector is one of the best sectors, like अपने आप को प्रूव करेगा ये 2022 में, जबकि 2021 में भी like इससे बहुत अच्छा गेन दिया। इट वाज अराउंड 69% का रिटर्न दिया है पावर सेक्टर ने। हैप्पीएस्ट माइंड का आप अगर देखोगे तो वीक ऑन वीक बेसिस द डिलीवरी दिसंबर महीने का ऑलमोस्ट इज 100%। वाओ, Is that मतलब जिसने because वो खरीदा, trade to हाँ trade में था क्या? 100% तो ट्रेड टू ट्रेड में ही होगा। कोई जिसने जरूरी नहीं है, नहीं ट्रेड टू ट्रेड में नहीं है, लेकिन ये नहीं है। एंड यू सी द वॉल्यूम हियर, यहाँ पर जो कंसोलिडेशन में इसका जो वॉल्यूम था अभी लास्ट 5-6 ट्रेडिंग सेशन से, दिस इज अ वीकली चार्ट, अच्छा सॉरी दिस इज अ डेज चार्ट, ठीक है, अभी लास्ट 5-6 सेशन से यू सी द वॉल्यूम। तो इस शेयर के को छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। इट्स अ मस्ट बाय शेयर इन योर पोर्टफोलियो। एब्सोल्युटली। और अब आपने बोल दिया है तो कौन छोड़ेगा? इसको खरीद लो, सब कोई खरीदते हो, मेरा जो रखा हुआ शेयर है उसके दाम बढ़ जाएंगे। So Suman has picked 2 shares, IEX and Happiest Minds. So great. I think we had a great special session today. Great beginning to the year. And I hope everybody has noted down the 10 stocks. नहीं तो एक बार फिर से बोल देते हैं। Shuchi had picked Tata Motors and Philip Carbon. पारुल के 2 स्टॉक्स थे, सोना BLW and HDFC AMC. Shubha had picked India Cements and Vodafone. Dolly के 2 स्टॉक्स थे, HCL Tech and LIC Housing Finance. And Suman के was IEX and Happiest Mind. सब यहाँ से हैप्पी हैप्पी होकर के जाओ एंड पोर्टफोलियो को इतना जानदार बनाओ कि आपके हस्बैंड हैप्पी हो जाएं। एकदम। और पूछे कि एक बार अपने मनी मैटर्स ग्रुप में पूछ लो कि क्या करना है इस। अरे एब्सोल्युटली कविता, अरे ये तो मजा आ जाता है सुन करके जब बुला करके बोलते हैं अपने रूम में कि शेयर को क्या करना है। So actually great session. Thank you so much to each one of you for finding these gems आपके ट्रेजर में से, क्योंकि इतने सारे शेयर्स में आप लोग ट्रेड करते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो उसमें से 2 निकालना बहुत मुश्किल होता है। बहुत चैलेंजिंग था। हाँ बहुत चैलेंजिंग था। More than 6,000 shares are listed. But Kavita, thank you so much giving us such a beautiful platform. At least women कभी-कभी hesitate करती हैं एक common platform में डिस्कस करने को। करेक्ट। ठीक है, क्योंकि मैं भी कुछ एक ऐसे ग्रुप के साथ में जुड़ी हुई हूँ जहाँ पे बहुत सारे मेन हैं, वुमेन हैं, लेकिन उनका रेशियो ऑलमोस्ट 70-30 है या 80-20 है। तो वहां पर दे यूजुअली हेजिटेट टू कमेंट और अपनी राय देने को थोड़ा सा मतलब हिचकिचाती हैं। एक्चुअली सुमन, आप लोग को तो इतना एक्सपीरियंस है, इतना नॉलेज है कि आप लोग तो फिर भी नहीं उतना शेकी होते होगे, बट पीपल लाइक अस जो कि बिल्कुल नहीं पता है कुछ, एंड उसमें अगर हमको कोई पूछता है या कभी बोलना होता है तो हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं कि अरे मतलब मुझे पता भी है तो भी हम नहीं बोलते हैं। कहाँ गलती पकड़ेंगे, हाँ कहीं गलत नहीं हो जाए। Absolutely. Abhi, I'll just give. I'd like to share one instance. Abhi, Yes. Last week, some friends were sitting. उसमें से I was the only female, and 5 or 6 men were there at my place. So coincidentally, we started talking about stocks. तो मुझे ना बड़ा मजा आ रहा था, तो मैंने 3-4 स्टॉक के नाम लिए. They were shocked. I mean, I was so happy to know that they're, happily shocked कि इसको बहुत knowledge है, तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत, it's just not even peanut का We've just started actually, Richa. Yeah. We've just started. But at least we started. Yeah, वो तो सुमन का वो जो lightning वाला जो एक session था ना, that jolted me कि चलो निकलो, come out of your slumber and start. That spark. एकदम your session was like that spark, एकदम lightning कि चलो हिलो. I have you to thank. Actually, we are actually grateful to each one of you कि आप लोग ग्रुप में सब शेयर करते हो, कोई पूछता है तो आप उसको रिप्लाई भी करते हो, you don't feel कि अरे इतना भी नहीं पता है, या मतलब we've been asking many questions जो कि
आप बोल सकते हो कि नहीं आप गूगल पे देख लो या कुछ, बट यू हैव बीन पेशेंट इनफ टू आंसर देम एकदम अच्छे से डिटेल में, चार्ट्स का हो या फंडामेंटल हो. सो इट हैज बीन अ very wonderful journey with all of you. I hope that the tribe of women traders and investors keep growing and हम लोग सब एक दूसरे से knowledge share करें और grow करें. So it was a fantastic session. Thank you so much, everyone. Awesome session. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. There are lots of compliments on the chat box. You all can just read it. वैसे recorded है तो I will be having it. But आप लोग एक बार अभी तो पढ़ लो, इतना मेहनत किए हो. सभी गुरुजनों को साक्षात नमन. So today we also have these Seki madam, Sonika जी भी हैं. रुको एक सेकंड में. हमारी इस हिसाब से फिर हमारी एक्चुअल गुरु दक्षिणा होगी कि अगले हफ्ते सारे पार्टिसिपेट करके बोले कि भाई हमने इस शेयर का एक ही शेयर लिया, कोई बात नहीं, एक शेयर लिया और हमने ये कमाया. और could it be better? Show me a thing that you bought from the profit. We will be more happy कि अरे यार ये मैंने ना पता है कल मैंने IEX बेचा, उसमें 5,000 रुपए आए तो उससे मैंने एक नई ड्रेस ली. That's how we should. Waiting to do that. Waiting to do that. Definitely will participate. Actually, that's how we should enjoy it. See, ultimately out here we are not working as bread earners. Okay, we Correct. are just trying to We are the secondary. employ yeah. ourselves. Now we are employing ourselves more productively rather than just sitting and gossiping around, or rather than just sitting and thinking what should we make, what should we do. It's Absolutely, like अपने yes. दिमाग को एक creative bend देना and side by side getting some kind of earning. चाहे पता है 10 रुपए भी कमाए ना तो वो एक खुशी मिलती है. और वो जो 10 रुपए का सामान लेके आते ना, चाहे अपने आप के लिए गुलाब खरीदो, तो लगता है यार ये मेरे पैसे से मैंने खरीदा है. You know what I love? Happy feeling. मैं मतलब with this share market and doing it at home, I earned that respect in eyes of my children. You know, मतलब एक होता है ना कि घर में वो लोग देखते कि मम्मी लोग तो घर में तो मम्मी आप क्या जानते हो, छोड़ो रहने दो. अच्छा ये पापा से पूछ लेंगे, रहने दो. बट ये जब इन लोग देखते हैं कि हाँ इतना एनालिटिकल बताते हैं या फिर हम लोग चार्ट्स देखते हैं या फिर ऐसे डिस्कस करते हैं ना, तो अब उनको लगता है कि नहीं मेरी मम्मी को ये भी आता है. तो वो नंबर क्वेश्चन ना उन लोग हमेशा रिलेट करते थे कि ये पापा ही बता सकेंगे. एंड जब पापा सीए हो तो और भी ये भाई लेकिन अब उनको ये कॉन्फिडेंस है कि नहीं मेरी मम्मी एंड दैट मतलब एक बहुत बड़ा चीज है. मुझे मॉनिटरी से ज्यादा ना कि वो चीज देखना कि हाँ नहीं माय ममा स्टैंड्स इक्विवेलेंट टू माय पापा. So that This is earns very a big. respect. Monetary is Absolutely. secondary. It earns you a respect in the Respect, yes. society. और स्टॉक मार्केट तो ऐसा चीज है ना, आप कहीं ग्रुप में जाते हो और पीपल इफ दे नो कि आप स्टॉक मार्केट देखते हो तो दे विल डेफिनेटली आस्क यू अरे कोई स्टॉक बताओ. Yes, This this is is like ज्योतिष ना, आप कोई भी पंडित को देख के नहीं बोलोगे मेरी रेखा देख के बताओ क्या लगता है. अच्छा, I just want to add one thing to what I was Dolly has waiting for said. IEX कि IEX अभी तक कोई बोला कोई नहीं बोला. सुमन, save the best for the last. Yeah. Yeah, true. जी bang on एकदम. Shuchi has something to say. Yes, Shuchi. Just I want to add to what Dolly has said कि this new year I think let's just make one resolution कि अपने stock markets track कर रहे हैं, अपने buy कर रहे हैं, अपने profits बना रहे हैं, अपने हर जो trade अपने करना चाहते हैं या कर रहे हैं अपने उसको journal करें, अपने उसको लिखें और उसमें ये लिखें कि अपने क्यों ले रहे हैं. I think all of us will have a fabulous मतलब हम लोग की learning भी होगी और हमें हमारा Correct. result दिखेगा कि हम ये क्यों खरीद रहे हैं, ये हमारा stop loss level है, ये हमारा टारगेट. अगर हम फंडामेंटल्स के बेसिस पे ले रहे हैं प्रॉबेबली हम एग्जैक्ट एक स्टॉप लॉस नहीं डिफाइन कर पाएंगे या टारगेट भी नहीं डिफाइन कर पाए, बट एटलीस्ट रीजन तो हम लिख सकेंगे. एक सिर्फ छोटी सी ये चीज है, अगर अपने ये स्टार्ट करें तो आई थिंक इट कुड रियली रियली शो वंडर्स. अपने एक साल बाद बात करेंगे उसके बाद कि अपने क्या सीखे. It's actually a very good suggestion to write down your trades. Yes. Can I add on here? Plus, don't hesitate to ask anything. Don't feel that you don't know. That Like तो we are not anything hesitating you don't anymore. know. अब तो ग्रुप में सब पूछते हैं हाँ, शुभा. पूछो, इन्वेस्ट करो, सेव करो, अर्न करो, feel proud.
डोंट थिंक कि यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट स्टॉक मार्केट। हम लोग कोई को कुछ नहीं आता है, फिर भी सबको सब कुछ आता है, ऐसे एक बात सोचो। और भी, अगर उन्हें लगे कि कोई ऐसा ट्रेड जैसे हमने बताया और वो रॉन्ग चला गया, तो भी आप हेजिटेट मत करो, आप पूछो हाँ, इसमें इट्स हुआ वेरी क्या है। इम्पोर्टेंट। करेक्ट। खास करके व्हेन हो सकता है ये हमारे नजर से चूक गया हो या फिर हमने ध्यान नहीं दिया हो, तो जो वो सुमन चीज जी ने बोला था ना शुरू में, मैंने और मेरे हस्बैंड दोनों ने लिए सीक्वेंट साइंटिफिक, मैं कमा के निकल गई, वो अटक गई। एब्सोल्युटली ट्रू। एंड मुझे क्या लगता है ना, स्टॉक मार्केट ऐसी चीज है जो कि अपने इंडियन विमेन घर बैठे it gives you that financial Correct. freedom, that financial independence. It also keeps you updated because आज अगर आप स्टॉक मार्केट में हो तो आपको सब चीज देखना पड़ता है, कंपनी भी कैसी कर रही है, प्लस वो सेक्टर भी कैसा कर रहा है, वर्ल्ड में उसका डिमांड है कि नहीं है. So it keeps you updated and as well as it gives you that financial freedom. So this is a great opportunity, everyone. Make the most of it. And जब हमारे पास ऐसे गुरु है तो हम लोगों को तो बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए 2 बार. And but yes, be cautious. Just don't trade कि उन्होंने ग्रुप में डाला है तो आप बिना देखे पढ़े खोजे उसके बारे में आप उसको इन्वेस्ट ना करो, ना ही उसमें ट्रेड लो. You must do Very your own important. research. True. Yes. It's We our are point not of view. teaching black Our box point of trading. view. We are not promoting any kind of tip trading. We are just कि भाई देखो क्या, जैसे बोला ना 6000 स्टॉक्स लिस्टेड है, हम अगर 10 स्टॉक के नाम रेकमेंड कर रहे हैं तो अब उस 10 में से आप लोग देखिए आपको क्या अपना अपील पसंद करता का. है. Yes. आपको क्या अपील करता just है, आप telling किसका कि ट्रैक रख सकते हो. शुरू में जैसे मेरे साथ हुआ, किसी ने कुछ बोला बट वो स्टॉक, हम लोग वो स्टॉक बताते हैं जो अभी चलने वाला है, या फिर इट्स अ गुड पिक फ्रॉम द सेक्टर, जो चीज हमें पहले नहीं मिला. आई लॉस्ट लॉट ऑफ मनी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि बोल दिया जब वो टॉप पे रहता है. इसीलिए मैं कितनी बार होता है बोलती हूँ नहीं नहीं यहाँ मत लेना, यहाँ पे आप फंस जाओगे, या फिर वो टॉप पे पहुंच चुका है ऑलरेडी. इट्स जस्ट लाइक नाउ पीपल वांट टू गेट रिड ऑफ इट. तो वो चीज, वो बस इसी के लिए हम लोग बस वी आर गाइडिंग दैट कि यू गेट द शेयर Yes. एट द राइट लेवल्स एट द राइट टाइम, कि उसके बाद फिर यू कैन सी द प्रॉफिट्स. फिर उसके बाद अभी 10 में से आपको क्या लेना है वो आप चूज कर लो. बट बस हमारा ये मकसद है कि एटलीस्ट यू गेट द राइट सेक्टर्स टू गेट इन. Absolutely great intent. होमवर्क यही है, सबको ही अपना हर 10 कंपनी का फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल चार्ट, डू योर ओन रिसर्च, इन्वेस्ट इन नॉलेज, इसके रिसर्च अपने आप करो, देन यू इन्वेस्ट. ये होमवर्क ही तो नहीं करते सारे, प्रॉब्लम यही है. ये होमवर्क अपना जो है ना सुबह 9 से 3 के बीच में मत करो. 3:15 बजे के बाद में जो सोने का टाइम मिलता है ना 1 घंटा, कि 5 बजे बच्चे खाना नाश्ता मांगेंगे, तो वो 3 से 5 के बीच में करो. So great everyone. सोने का टाइम देती कहाँ है कविता?